दरवाजे पीछे बंद कर दो, तो बाहर से डिस्टर्ब करके आ जाता हूँ। जैसा हम लोग जान रहे हैं कि हम जिस वर्कशॉप के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, अगर ईमानदारी से कहें तो हमारे सामने प्रस्ताव था कि ये वर्कशॉप अंग्रेजी में चलेगा। तो मुझे लगा कि अगर इसको हम लोग बाइलिंगुअल कर लेते हैं, थोड़ा अंग्रेजी हिंदी मिला करके चलता है, तो शायद हमारे लिए उपयोगी ज़्यादा होगा। तो हमने प्रभाकर जी से निवेदन किया, जो आपके स्किल डेवलपमेंट के ट्रेनर हैं, कि बेहतर होगा कि हम इसे मिला कर ले जाएं। मैं being a facilitator, being an anchor, it's my duty to establish a level playing field in between dais and audience. And second one, to present theory in detail upon which the workshop will be based. One thing, without any documented proof, everyone will accept that education system in the country right now is in coma. If any support is needed, we can see the word ranking of education institution. We will not find even a single institute of the country under 100. First question which we have to address in this workshop is how the education system can be made relevant for this new socio-economic world order. It means this workshop will focus on this very first problem, how the education system can be reformed. We know the education system is constituted by four important stakeholders. They are students, teaching community, parents, and policy makers. How these stakeholders can be further coordinated? This is the basic problem of the entire education system. That's why such type of changes are required which can coordinate these four stakeholders. I hope this workshop will certainly focus on this issue. Second one, researchers make clear this fact that more than 80%, I'm sorry to say, teachers in the teaching community are by chance. Only 20% teachers are by choice. Perhaps this is the second basic reason why we are lacking in so many regions. But hope is still there. This workshop is an attempt to change those teachers who are by chance in this field, how they can be transformed into a good teacher through regular practice. I think this workshop will focus certainly on this issue also. Normal teachers means there is a psychological research which tells you that teacher has four jobs which he should perform. Teacher should tell, teacher should explain, teacher should demonstrate, and teacher should inspire. If a teacher only tells, suppose you just open your book and start reading, this is the chapter, this is the content, and
read again and again without doing anything in the classroom. This is defined as normal. Psychologists say these type of teachers are by chance in the service. They are not by choice. But a teacher who is good, he tells, he explains, and he demonstrates by examples, by model, by any type of supporting documents. Now, main purpose of this workshop is to transform that particular teacher into not only a good teacher, but not only a good teacher, but into a good mentor. Who is a mentor? Mentor is actually he who has capacity to make the students able in creating, in preserving, and in communicating. How efficient your student can create, how efficient he is in communicating, how qualified he is in preserving whatever he has. This is the quality of mentor. But journey does not end at this point. You have to make yourself a good mentor. Question is, who is good mentor? Good mentor is he who knows what kind of knowledge is required for the students, what kind of skill is required for the students, what kind of value is required for the students in change the socio-economic world order. It means today or tomorrow. This type of change is required in the society just to make the country Vishwaguru, just to make the education system well organized, and this type of change you can bring in the system just by organizing such type of workshop. And I am sure that this workshop will be very good, will be very useful, and it will give all solutions to all these questions which just I have raised before you. Without wasting much more time, I think it would be better if I call a person who fortunately belongs to our district. He is native of Jaunpur. He started his career in 2007 as an English trainer. Up to 2011, he established more than 18 branches of institutions in UP and NCR. In 2013, he organized an international conference on intercultural communication in which more than 55 lecturers from more than 50 countries participated. And he is Mr. Prabhakar Singh. I think give big hands to Mr. Prabhakar Singh and welcome Prabhakar Singh. Please come on the left and take charge. Thank you very much. First of all, I would like to give my special thanks to all of you that you have given your precious time here in Balrampur Hall. It is both honor and pleasure to present myself such an eminent lecturer like you. Today, before initiating my lecture, I would like to say why I have organized this innovation in Indian education program. I am basically from Jaunpur city, and I have found not even the Jaunpur, almost every part of the India, even almost every part of the world, there is a big gap comes up right now. America is also struggling, Europe is also struggling, and we are finding that most of the organizations which are going all around the world, they are struggling at present time. The thing which is required at present time, the technology is changing very rapidly, market is changing very rapidly, requirement of market is totally different. Whatever we are giving
2050, we are having more than 50 crore unemployed in whole India, and that will be a disaster. So, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रोग्राम हमने रखा है, ये प्रोग्राम न सिर्फ जौनपुर के लिए है, बल्कि ये पूरे देश के लिए है, और जो मैं आज यहाँ से एड्रेस करने जा रहा हूँ, वो पूरे देश की जरूरत है। और मैं कहूँगा कि आप लोग, क्योंकि जौनपुर का मैं रहने वाला हूँ, मेरा पहला उद्देश्य है जौनपुर की हर संस्था को डेवलप करना, हर ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना, और एक तरीके का ऐसा इन्वायरमेंट बनाना जो कि हम किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई और यूनिवर्सिटी हो, उससे बेहतर हम परफॉर्म कर पाए। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, प्लेस नेवर मेकर डिफरेंस डिफरेंसेस कम व्हेन वी आर चेंजिंग आवर थॉट्स। जगह से बदलाव नहीं आता, विचार बदलने से बदलाव आता है, और ज्यादा जरूरी वही चीज है कि हम अपने विचारों में एक बड़ा बदलाव लाएं। इनोवेशन इन एजुकेशन का ये जो हमारा प्रोग्राम है, सबसे पहले मैं इस श्लोक के साथ इसे शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक मेरा जौनपुर का अनुभव रहा, लगभग सारे ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटी हर जगह मैंने विजिट किया। तो शुरुआत में मैं एक श्लोक के साथ अपने इस लेक्चर को शुरू करना चाहूंगा, और जो आज मैं नौ टॉपिक सेलेक्ट किया हूं आपको देने के लिए, आप अगर उसमें से चीजों को ग्रहण करेंगे, मैं 100% आपको बता सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी बड़े से बड़े लेक्चरर से आंखों में आंखें मिलाकर आप बात कर सकते हैं। Nothing which I am going to elaborate today here, which are very much required for being a mentor at present time. So, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्वा माते सर्वोस्तु कर्मणि। मैं इस श्लोक से इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि अभी तक का मेरा जो अनुभव रहा, उस अनुभव में चेंज को ग्रहण करने के लिए लोग नहीं थे। जिस प्रकार का इनोवेशन आज चाहिए, उस इनोवेशन को अपने अंदर लाने के लिए लोग नहीं थे। और मेरा ये पहला स्टेप है, मैं आपको 2 वीडियो के माध्यम से शुरुआत करना चाहूंगा इस लेक्चर का, और आप लोगों को भी कहना चाहूंगा कि एटमॉस्फेयर जो हम हमेशा कहते हैं हमारा एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, मैं आपको कहता हूं आप खुद को बदलो, एटमॉस्फेयर अपने आप बदलेगा। यू स्टार्ट चेंजिंग योरसेल्फ, यू विल फाइंड दैट slowly whole atmosphere will change. You start upgrading yourself, you are finding that slowly the thing will be upgraded. और इसलिए मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि शुरुआत होनी चाहिए, हमें उस दिशा में शुरुआत करनी है जिस दिशा में आज की जरूरत है बदलाव की। मैं आपको अपने बारे में बताऊं, 2013 से 2004 से जब मैंने अपने इंस्टीट्यूशन को ऑर्गेनाइज किया, स्टार्ट किया, तब से लेके 2013 में मैं जब 50 देशों का कॉन्फ्रेंस किया था इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन पे, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस जिसमें 50 देश के लेक्चरर ने हिस्सेदारी ली थी, मैं आपको उसमें से कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जौनपुर में रह के ही ये चीजें हासिल हुई। ये चीज कहना कि हम जौनपुर में रह के बहुत बड़ा नहीं कर सकते, कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकते, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और मैं यहाँ आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि सोच में बदलाव कीजिए, वी विल डेफिनेटली डेवलप आवर सिटी। और मैं ये जो इनोवेशन इन एजुकेशन का प्रोग्राम चालू किया हूँ, इस प्रोग्राम का मेरा ऑब्जेक्टिव है 75 जिलों में 5000 सेमिनार में करने जा रहा हूँ, 25 लाख लोगों के बीच में। और चूंकि जौनपुर मेरी मातृभूमि है, जौनपुर मेरा सबसे कंसर्न एरिया है, और इसलिए सबसे पहले मैं जौनपुर से डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहता हूँ। एंड आई वांट टू से वी हैव टू फॉलो द पॉजिटिव थिंग व्हिच विल लीड टू द वे ऑफ सक्सेस। सो आई विल शो यू 2 वीडियोस, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और ये वीडियो में बहुत कुछ कहता है, जब हम बदलाव की तरफ सोचते हैं और हमें ये लगता है हमारे पास कोई टीम नहीं है, हमें ये लगता है हमारे पास कोई ऐसे लोग नहीं है जो हमें उस दिशा में ले जा सके, और हमें ये लगता है जब अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं हमने हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जिन लोगों के बीच में रहते हैं उनकी वजह से हम नॉन परफॉर्मर हो गए। मैं काफी यहाँ के रिटायर्ड प्रोफेसर से भी मिला, काफी लेक्चरर से भी मिला, मेरा जो अनुभव रहा काफी पैसिमिस्टिक टाइप का एटमॉस्फेयर हो गया है। हम लोगों को आगे आना होगा, जो वर्तमान समय में प्रोफेसर लेक्चरर्स हैं, हम सबको मिलकर एक पॉजिटिविटी डेवलप करनी
ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है। ये एक व्यक्ति है जो कि केरला की कहानी है, और मैं इसको बताना चाहूंगा कि इसमें हमें वो मिलता है जहां पे एक तो भावना है इंद्राचल की और एक तो भावना है डलन की। दैट विल कम टू दिस वीडियो एंड आई वांट टू से दैट दिस विल मेक सम बिग डिफरेंस। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट भी कर दूंगा। मजौली आइलैंड की एक छोटी सी कहानी, जहां पर एक व्यक्ति डेली एक बैग लेकर जाता था। किसी को नहीं पता था कि वो कहां जाता है। वो मजौली आइलैंड जिसकी मैं बात कर रहा था, एक डिजर्ट था, एक रेगिस्तान बन चुका था, जहां कहीं पे एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। ये व्यक्ति डेली वहां पे जाता था। लगभग 37 साल, ध्यान दीजिएगा, 37 साल लगातार वो वहां पर जाता था। एक दिन पता चला कि वो लेकर क्या जाता है, तो पता चला अपने बैग में एक पौधा लेकर जाता है, और 37 साल तक उसने लगातार एक पौधा लगाया। और वो मजौली आइलैंड एक बहुत बड़ा आइलैंड, 1269 एकड़ में वो बड़ा आइलैंड बना। वहां जहां बंजर था वहां पे पूरा जंगल का निर्माण हुआ, और वहां पे जंगली जानवर भी आए, और एक प्रकार का इतना बड़ा अपने आप में ये एक अचीवमेंट था जिसको शब्द में नहीं कहा जा सकता। इस चीज से मैं आपको कहना चाहूंगा, वी नीड नॉट टू फॉलो पीपल, वी हैव टू फॉलो आवरसेल्फ। हमें लोगों को फॉलो करके हमेशा नहीं चलना चाहिए, हमें खुद को फॉलो करना चाहिए। फॉर बीइंग अ गुड लेक्चरर, फॉर बीइंग अ गुड प्रोफेसर, इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू गो थ्रू आवर ओन रिसर्च। हमें अपने इंटेलिजेंस को अलाउ करना चाहिए कि वो नई चीजें खोजे। किसी का दिमाग गड़बड़ नहीं होता। एवरीवन ऑफ अस हैविंग द आइडिया। मैं भी प्रूव करूंगा अपने लेक्चर के द्वारा कि किस तरीके से 14 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में भी अगर कोई शुरुआत करता है तो विश्व का अधिपति बन जाता है, विश्व में बहुत बड़ा काम करता है। सो वी मे नॉट से कि मेरी तो उम्र हो गई, हाउ वुड वी परफॉर्म। आई एम सेइंग टू यू कि मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, मैं वो डेवलपमेंट यहां पे चाहता हूं। और अगर आप चाहेंगे तो मैं रेगुलर ट्रेनिंग, ना सिर्फ एक लेक्चर बल्कि एक रेगुलर ट्रेनिंग देंगे, जिसमें आपकी पूरी स्किल को मैं निखार दूंगा, which will workable for the today's market, for the current market, which will workable for this 21st century. And in that regard, I want to show you one more video and then I will start my lectures. एक और वीडियो में दिखाना चाहूंगा, ये उन लोगों के लिए है जो कि हमारे लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, और जो ये सोचते हैं कि आज वर्तमान समय में मैं जो भी कर रहा हूँ, मेरा एक एरिया है, एक लिमिटेशंस है, और मैं आज जो एक टीचर ट्यूटर का कॉन्सेप्ट भी देने जा रहा हूँ, और मैं आज आप लोगों को आपकी असली पोटेंशियल का एहसास कराऊंगा कि आपके अंदर अथाह क्षमता है, जिस क्षमता को आपने क्लासरूम के 4 वॉल में कैरी कर रखा है। तो उस पूरे जो हमारी एनर्जी अनटैप्ड है, उसको कैसे हम कैरी करके एक बेस्ट रिजल्ट ला सकते हैं। आई विल गिव यू दैट थिंग आल्सो। सो लेट मी शेयर वन मोर वीडियो विद यू। और ये वीडियो If you want that, I will just run it very slowly. एक
पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति था जिसकी 5 साल की उम्र में उनके पिताजी का देहांत हो गया था। 16 साल की उम्र में वो साइको हो गए थे, स्कूल गए थे, स्कूल को उन्होंने छोड़ दिया। 17 साल की उम्र में उनकी 4 नौकरियां उनकी छूटी और उसके बाद 18 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। 19 साल की उम्र में उनको एक लड़की हुई और 20 साल की उम्र में उनकी वाइफ उनको छोड़ के चली गई। 26 साल की उम्र में उनको नौकरी से निकाल दिया गया सेल्स की, और उसके बाद अपनी खुद की बेटी को किडनैप करने की कोशिश की, उसको पास रखने के लिए। फिर कुछ समय बाद उनकी वाइफ वापस आ गई। 65 साल की उम्र में वो रिटायर हुए और जो उनकी इनकम थी वो थी $105। फिर उसके बाद उन्होंने तय किया कि मुझे मर जाना चाहिए। इन कमिंग सोसाइटी इन ट्राइंग टू देयर इज अ थॉट समथिंग इन माइंड कि मुझे अब आत्महत्या कर लेना चाहिए, मेरे जीवन का मिशन खत्म हो गया है। तभी उनको अचानक से याद आया कि मेरी जिंदगी में एक चीज जो मैं बेहतर कर सकता हूं वो बचा। 65 साल की उम्र में यह विचार उनके दिमाग में आया कि एक चीज जो मैं बेहतर कर सकता हूं वो अभी बचा है और वो कोई और मुझसे बेहतर नहीं कर सकता, और वो था खाना बनाना। व्हाट इट इज टू कुकिंग फूड। 65 साल की उम्र में उन्होंने सोचा एक चीज, इतनी हार होने के बाद, इतना बुरा होने के बाद एक चीज 65 साल की उम्र में उनके दिमाग में आया कि मैं अपनी जिंदगी में, जब उनके दिमाग में ख्याल आया मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, उसी के पहले एक ख्याल ये आया कि मुझे एक और चीज जो मैं बेहतर कर सकता हूं करके देखता हूं। ये रोजगार को लेकर मैं कह रहा हूं, सिर्फ खाना बनाने की बात नहीं, उसको मैं करके देखता हूं। इट मे बी दैट आई कैन डू बेटर। $87 उनके पास थे। उन्होंने कुछ चिकन खरीदे, उसको फ्राई किया और अपनी खुद की रेसिपी में उसको बनाया। घर में वो जाते थे, उसको बेचते थे अपने पड़ोसियों को। और उस आदमी का नाम था कॉलिन सैंडर्स। KFC का मालिक, खरबपति, 65 साल की उम्र में $37, जो हम कहते हैं हमारी उम्र हो चुकी है। अब हम नए युवा पीढ़ियों को करने में, क्योंकि हमारा जो अनुभव होता है बहुत ही कीमती है। अनुभव के साथ अगर वर्तमान समय की हम चीजों को एक्सेस कर ले तो हमसे बेहतर टीचर कोई हो नहीं सकता। एंड दैट वुड बी द इम्पोर्टेंट थिंग, वी नीड द अप्रेंटिसशिप। और ये वही व्यक्ति है जो 65 साल की उम्र में सुसाइड करना चाहता था। $27 से स्टार्ट करके उस व्यक्ति ने बिलियनियर, खरबों की प्रॉपर्टी बनाई, खरबों का इन्कम किया और एक ऐसी कंपनी खोली। और 88 साल की उम्र में ये मल्टी बिलियनियर का मतलब खरबपति व्यक्ति बन गए। और दैट वाज द ऑसम अचीवमेंट व्हाट ही हैव मेड। इसलिए इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट ऑल ओवर, बिलीव इन योरसेल्फ, वर्क हार्ड एंड गो फॉर ग्लोरी। कभी नहीं सोचना चाहिए हमारी जिंदगी में अब तो बहुत देर हो गई। आई वांट टू से दिस इज द थिंग व्हिच वी हैव टू एक्वायर। अगर हम वर्तमान समय में हैं, और ये मैं तो समझता हूं कि रिटायरमेंट के बाद भी प्रोफेसर्स को एक ऐसी कम्युनिटी है जो आर द लीडर ऑफ द सोसाइटी। इन माय ओपिनियन प्रोफेसर आर द लीडर ऑफ द सोसाइटी एंड दे नीड टू लीड द सोसाइटी। Whatever the knowledge and ability we are having, that will be workable for the society, for the nation, and we need to go through that. And that is something we can achieve by our great work. तो ये हमें बताता है कि जो व्यक्ति को सोचते हैं, आजकल हमारे यहाँ किसी की 65 साल उम्र हो जाती है तो कहते हैं हम बैठ के आराम करो, दादाजी बैठ जाइए। But the thing is that we have found this kind of personality जो हमें इंस्पायर करते हैं कि जब भी आप किसी चीज को दिल से शुरू करोगे, करना चाहोगे आपकी लाइफ में, it would be never too late. You should start it, you should develop it, and you should make it in a higher and great way. अब मैं आपको यहाँ पे कुछ कपल ऑफ वीडियोस दिखाना चाहता हूँ, और ये वीडियो एक इंडिकेशंस है आपको इस
इंस्पायर करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, और मैं चाहूंगा कि आप भी इंटरनेशनल कम्युनिटी से जुड़ना चाहें तो मेरे माध्यम से, और यहाँ पे भी अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी को बुलाकर प्रोग्राम करना चाहें, आई विल कॉल, देयर आर मोर देन 50 lecturers around the world are working with me, and we will work for the shape of the betterment of the whole world, not even the India. पूरी दुनिया में क्या बेहतर कर सकते हैं, we are looking for that. तो मैं आपको कहना चाहूंगा, there are some couple of videos which I run, और मैं इस चीज को कहता हूँ, हमारा जौनपुर सब कुछ कर सकता है. Only we need to change the mindset of ourselves. Which I want to say, even more than hundreds, and the renowned lecturer from all around the world working under me. And I'm a teacher of English as a foreign language in Italy. My native tongue is Australian English. I was born and bred in Australia. I want to take this opportunity to introduce myself to the other lecturers on this wonderful opportunity to talk about intercultural communication. I would like to thank Professor Prabhakar Singh, who organised this fantastic conference, online conference, which will take place on the 11th of May, and where most of us will be. There are so many videos which I have, and the discussions also. जिस टॉपिक को लेकर आज मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उस टॉपिक को लेकर ये डिस्कशन दुनिया के बहुत से लोगों से हुए, और जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, he is from England and his name is Chris, multi-millionaire person है, 30,000 से ज़्यादा कंपनियों के साथ वर्क करते हैं, and we are making collaboration recently, और दुनिया के 50 देशों के साथ जो हमारा collaboration है उसमें लेक्चरर, प्रोफेसर और स्टूडेंट के जो बड़े-बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, they are working with us, और हम लोग का जो डिस्कशन होता है वर्ल्ड एजुकेशन में डेवलपमेंट को लेकर जो चीजें हम कर सकते हैं, we are discussing about that, and I want to say that these were the things I have done at the age of 25 when I initiated to work in that job. Now, without wasting the time, I would like to initiate the lectures here. Innovation in Indian education. एक शब्द से मैं इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ. The illiterate of 21st century are not those who cannot read and write. The illiterate of the 21st century are those who cannot learn, relearn, or learn, unlearn, and relearn the things. I want to say, आज की डेट में अनपढ़ वो नहीं है जिसको पढ़ने और लिखने नहीं आता. आज की डेट में अनपढ़ वो है जो सीख नहीं सकता, नई चीजों को ग्रहण नहीं कर सकता, और अपने दिमाग से खराब चीजों को निकालने की क्षमता नहीं रखता. सो जो आज का पढ़ाई है वो आउटकम पे डिपेंड कर रहा है. टोटली द डिग्री व्हाट यू आर हैविंग इज नॉट इंपॉर्टेंट एट प्रेजेंट टाइम. द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ मच यू नो, हाउ मच यू आर एबल टू परफॉर्म, हाउ मच यू आर एबल टू give to the society and the market. That all the things are required at present time. तो आज 21वीं सदी की जो शिक्षा है उसमें हम पहली चीज को यहाँ बता दें कि शिक्षा वो नहीं कि हम पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, ये काफी नहीं है आज के डेट में. और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि शुरू से लेकर आज तक जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे सेकेंडरी एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, मैं यहाँ पे काफी नामी कॉलेजेस में गया, कुछ टेरिबल अनुभव रहा, जो कि बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं. I don't want to take the name. I interacted with the principals and the people who were there, और उनके पास ऐसे आइडियाज नहीं हैं जिससे वो बच्चों के माइंड्स को डेवलप कर पाए, इंटेलिजेंस को डेवलप कर पाए. वो एक पैरेंट की तरह चीजों को रटाना चाहते हैं और उसके बाद चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें. आई वांट टू से ये चीज हमें छोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर अस टू प्रोवाइड द डेवलपमेंट फॉर द कमिंग जनरेशंस. क्योंकि हम कोई चीज मदद करके एग्जाम पास कर सकते हैं पर अपने व्यक्तित्व को नहीं बना सकते. आज की डेट में जिस चीज की हमें जरूरत है वो ये है कि हम लोगों को अपने व्यक्तित्व के
हमारे दिमाग में या तो कोई चीज पढ़ के जाती है या तो कोई चीज सुन के जाती है। व्यक्त कैसे करते हैं? व्यक्त हम करते हैं या तो बोलकर या तो लिखकर। आज का सवाल ये उठता है हमारे शहर में या अगल बगल के शहर में, जौनपुर की बात नहीं है, मैं बनारस गया, मैं इलाहाबाद गया, मैं कानपुर गया, बहुत जगह मैंने देखा कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वी नेवर से दैट वहां पे बड़ा अच्छा है यहाँ पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंटायर कंट्री की प्रॉब्लम है, दिस इज द बिग प्रॉब्लम ऑफ आवर इंटायर कंट्री। सो जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो एक ट्रेडिशन चल रहा है, ट्रेडिशनल काइंड ऑफ एजुकेशन जो चल रहा है कि हमने किताब का सिलेबस पढ़ा दिया, वो चीज लेकर बच्चा क्या करेगा। मेरा जो अनुभव रहा, हमारे लगभग 15-20 हजार बच्चों से ज्यादा मैं इंटरेक्ट कर चुका हूँ। बच्चे 10 लाइन अपने आप से बोलना नहीं जानते। किसी भी बच्चे को आप खड़ा कर दीजिए, बोल दिए बेटा 10 लाइन आप किसी एक टॉपिक को दे दीजिए, बोल के दिखाओगे, यू विल फाइंड दैट इज अनएबल टू स्पीक। बड़ा सवाल ये होता है कि हम इतने कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, स्कूल वाले स्कूल में पढ़ाते हैं, उसके बाद भी व्हाई वी आर नॉट डेवलपिंग देयर एबिलिटी, हम उनको डेवलप क्यों नहीं कर रहे, दे आर परफॉर्मिंग ऑन द थिंग्स, वो एक नॉन परफॉर्मर के रूप में कहां तक जाएंगे। और आज की डेट में जो एजुकेशन की जरूरत है, मैं आपको वो ग्लिम्स दिखाने जा रहा हूं आज, जो 21वीं सदी की आवश्यकता है। और अगर इसको कोई अडॉप्ट नहीं किया तो आने वाले 3-4 साल बाद एक कॉलेज का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि बच्चे कॉलेज में जाए ही नहीं। दिस वुड बी द कंडीशन विल इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि मैं एकदम क्लियरली यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है। कोई कितना भी बड़ा विद्वान आदमी उसको कहिए 4 साल बाद क्या होने वाला है देश में, वो बता नहीं सकता। Because the big problem which is comes up right now, that is there are different type of requirements. आप देखो डिग्री इन्फ्लेशन कितना हुआ, 90 में कितने में नौकरी मिल जाती थी। पहले कोई बीएड करता था जॉब मिल जाती थी, फिर टीटी करता था जॉब मिल जाती थी। अब क्या हुआ, अगर ज्यादा सर्टिफिकेट ने क्वालिफाई किया तो टीटी के बाद ही एग्जाम हुआ। पहले पीएचडी करने से लेक्चर बन जाते थे, अब नेट क्वालिफाई करना जरूरी हो गया। पहले आईएएस के एग्जाम में कोई सीसेट नहीं था, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट की जरूरत ही नहीं थी, बट आज की डेट में दैट वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो सीसेट आता है क्योंकि बौद्धिक परीक्षण है, एंड आई वांट टू से हियर दैट द टाइम डिमांड फॉर द चेंज। गवर्नमेंट अपनी नीतियां बदल रही है, लेकिन फिर भी एक पूरा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने के बाद भी वी आर अनेबल टू रीच आवर पोजीशन। और वहां खामियां क्या थी? खामियां ये है एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूशन लोगों को करना है, दे आर अनेबल टू मेक इट इन करेक्ट मैनर, बिकॉज it would be very important for us to understand when we talk about the skill. Skill क्या होता है? आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूँ। Our Prime Minister is talking about skill, scale and speed. He used to speak in his lecture, skill, scale and speed. इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। I want to say over here कि हम लोग इस चीज की बात करते हैं, skill, scale और skill की। So there are some couple of things we have to keep in our minds. If I say that what is the difference between the cook and chef? What is the difference between the tailor and designer? If I talk about the difference between the fashion designer and tailor, and if I talk about the difference between the cook and chef, what are the difference? A cook gets 5,000 rupees, but a chef gets 5 lakhs, 6 lakhs rupees, and they both are doing the same kind of things. A tailor gets 5 to 10,000 rupees in a month, but the fashion designer gets 10 lakhs, 20 lakhs rupees. What's the difference? Is that the skill difference? No. Skill की बात नहीं, वो भी खाना बनाना जानता है, वो भी खाना बनाना जानता है. This is all about the intelligence difference. This is all about the creativity difference. And creativity and intelligence are required. And that's why chef हो या फिर आपके फैशन डिजाइनर हो, वो चीजों को क्रिएट करते हैं, नई रेसिपी को क्रिएट करने का काम करते हैं, and that's why they are leading. Second thing I want to say over here, similarly we are talking about कुक तो बहुत लोग होंगे। एक परिवार में मान लीजिए अगर हमें किसी को खाना बनाना है, हस्बैंड ऑफ द हाउस उनको अस्थमा है, वाइफ ऑफ द हाउस उनको डायबिटीज है, ग्रैंडफादर ऑफ द हाउस बीपी की प्रॉब्लम है, तो कौन सा खाना बनाएंगे? हमने 200 किताबें पढ़ ली कुकिंग की, 200 किताबें पढ़ के एग्जाम दे दिया, लेकिन क्या ये किसी को पता है किसी को चपाती बनाने भी आता है? Reading is a very different thing and performance is very different thing. I want to say that reading is useless until you perform on it. So it would be very important कि मेरे lecturers को ये ध्यान देना है कि it would be very very important thing we have to keep in our mind when we are going to teach the students, that we have to give them learning space, performing space
And if you are not giving them performing and learning space, then what happens? I will show you some data on that. How much our mind capable to receive when we are talking about that. ये 3 वर्ड यहाँ पे लिखे गए हैं, इन्वेंशन, इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन। इन्वेंशन किसे कहते हैं हम? खोज को। इंप्रूवमेंट किसे कहते हैं? सुधार को। इनोवेशन किसे कहते हैं? नवीनीकरण। तीनों में डिफरेंस क्या है? राइट नाउ जो थर्ड टर्म है ये हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो है इनोवेशन। किसी भी व्यक्ति को देखिए, ही इज टॉकिंग अबाउट द इनोवेशन। सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस। इन्वेंशन, जब हम किसी चीज की खोज करते हैं, कोई नई चीज जो जिसका अस्तित्व पृथ्वी पे ना हो, उसे हम इन्वेंशन बोलते हैं। फिर उसी चीज की हम सुधार करते हैं, उसे हम इंप्रूवमेंट बोलते हैं। लेकिन जब हम इनोवेशन की बात करते हैं तो हम नए वैल्यू को ऐड करते हैं उसमें। We add new values, and right now when we talk about the innovation, then it will be very important for us to understand that we have to make the entire thing change. We have to make it in different way, in new ways. That is not all about the improvement. That is all about making the thing, adding the values, and make the new aspects of it. That would be the very important thing we have to keep in our mind. जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनोवेशन बोलते हैं। So आज का जो दौर है वो है इनोवेशन का। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन क्या है? लैटिन वर्ड एजुकेट से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? ड्राउट। ड्राउट का मतलब लंबा करना। मींस आपने कोई एजुकेशन लिया है, उसको आगे बढ़ाना। एंड दैट वुड बी द इंपॉर्टेंट थिंग। आर वी डूइंग दैट? क्या हम उसको कर रहे हैं? क्या हम किसी भी एजुकेशन के आगे जो बुक्स हमारे पास है, we are doing the research, we have done the research also. एक बड़ा सवाल ये भी आता है रिसर्च की बहुत इंपॉर्टेंट इसकी लर्निंग क्या ये सकती है पीएचडी के टाइम यूज होती है? क्या प्रोफेसर रेगुलर रिसर्च नहीं कर सकते चीजों पे? आर दे नॉट एबल टू मेक द रेगुलर रिसर्च, द थिंग व्हिच इज हैपनिंग इन द मार्केट, द थिंग व्हिच इज गोइंग ऑन? आर वी नॉट एबल टू अपडेट आवरसेल्फ? इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, टू मेक द अपग्रेडेशन. So the first thing is that how to develop the intelligence of the student through our teaching pedagogy. हम अपने बच्चों की इंटेलिजेंस को टीचिंग पेडागोजी, जो हमारी पढ़ाने की पद्धति है, उससे किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं. That is a point which I would like to say over here. There, कुछ दिन पहले मुझे एक प्रोफेसर मिले थे, उन्होंने मुझसे बोला कि इंटेलिजेंस तो पैदाइश से मिलता है सर. And I'm talking about the thoughts which are existing in our traditional kind of education. इंटेलिजेंस तो पैदाइश से मिलता है, आप ऐसे किसी का इंटेलिजेंस कैसे डेवलप करोगे? जेनेटिक, इट्स ऑल अबाउट द जेनेटिक बीइंग. तो मैंने इसके ऊपर अध्ययन भी किया and I have found that there are two kinds of intelligence existing in our minds. The first one is crystallized intelligence, and that is totally based on your nature, information, education which you are taking. The second one is fluid intelligence, that would be trainable. तो पहला इंटेलिजेंस जो होता है वो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होता है, जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज, जो ज्ञान हम अपने अंदर लेते हैं वो हमारा क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के अंतर्गत होता है. लेकिन एक हमारी ब्रेन में फ्लूइड इंटेलिजेंस पाया जाता है, और फ्लूइड इंटेलिजेंस में क्या होता है? एक कैपेबिलिटी जो चीजों को लर्निंग कैपेबिलिटी रखती है, और उससे क्या होता है? हम किसी भी चीज को कभी भी सीख सकते हैं. सो एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, हमारा माइंड कैसे वर्क करता है? न्यूरॉन्स. हमारे माइंड में जब हम कोई चीज सीखते हैं तो क्या होता है? न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है. और ये न्यूरोप्लास्टिसिटी बेसिक लेवल पे, मैं आपको बताऊं, कोई भी एक बच्चा जो 2 साल की उम्र में होता है, स्कूल नहीं जाता, चाहे किसी का भी लड़का हो, आप उससे उसको अगर आप ऑब्जर्व करो तो देखो 2 साल की उम्र तक उसको भाषा बोलना, चीजों को पहचानना और टॉफी बिस्कुट का नाम तक सब कुछ याद हो जाता है. लेकिन वही बच्चा अगले 14 साल स्कूल जाता है, उसके माता पिता कहते हैं बेटा तुम कमजोर हो गए. God has not made them weak. They know very well how to talk the language, how to talk everything. Then why the hell they become weak? क्या कारण ऐसा रहा कि जो बच्चा 2 साल औसतन जो सारे बच्चे सीखते उसने भी सीखा, लेकिन आने वाले 14 साल बाद उसके घर वाले, उसके प्रोफेसर, उसके टीचर ने कहा तुम बहुत कमजोर. What is the reason? क्या हम इसी ये चीज कह सकते हैं किसी बच्चे का दिमाग कमजोर है? कमजोर तो एक ऐसा शब्द है, कम धन जोर. जिस चीज पे आप जोर कम दोगे आपका
That doesn't mean you can't perform. Problem ये है his focus is somewhere else. और इंटेलिजेंस की जरूरत यही है कि हमें पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा इस चीज का बिलीव करिए कि इंटेलिजेंस डेवलप किया जाता है और उसका जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है नॉवेल क्रिएटिविटी। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक यहाँ पे पूरा सूत्र लिखा हुआ है नॉवेल एक्टिविटीज। नॉवेल एक्टिविटीज कहते हैं जब भी हम लोग कोई नई चीज करते हैं, हम चाहे एडिसन की बात करें चाहे न्यूटन की बात करें, क्या हमने कोई कॉलेज और स्कूल से पढ़ाई की थी? वो एक नॉवेल एक्टिविटीज करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं, जिसको लेकर वो सोचते थे, आगे बढ़ते थे, फोकस रहते थे, उनके पास आइडियाज आते थे। क्योंकि हमारे दिमाग में भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है जिससे हम किसी भी चीज की तरफ आप ध्यान दोगे, आइडियाज ऑटोमेटिकली कम्स टू माइंड। एंड आई वांट टू से ओवर हियर कि नॉवेल एक्टिविटीज ट्रिगर डोपामाइन। डोपामाइन हम कहते हैं, जब हम नॉवेल एक्टिविटी कहते हैं तो हमारे माइंड में डोपामाइन होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज जो हमारे इंटेलिजेंस में सेंड करता है। एंड दैट व्हाट इट क्रिएट हायर मोटिवेशन स्टेट। उससे हमारे दिमाग में एक हायर मोटिवेशनल स्टेट होता है, हम काफी ज्यादा प्रेरित होते हैं जब हमें इस तरीके के नॉवेल कॉज को लेकर आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद हमारे जो प्राइम्स न्यूरॉन्स होते हैं, जो मुख्य न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स उसमें एंगेज हो जाते हैं। एंड दैट व्हाट हैपेंड, न्यूरोजेनेसिस होता है और उससे आपकी सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी बढ़ती है। सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी की जब मैं बात करता हूं, नए न्यूरॉन्स आपके दिमाग में पैदा होते हैं। सो हाउ वुड वी से कि जो गधा है वो गधा है, जिसको नहीं आता वो नहीं आता। ये प्रूवन रिसर्च में बता रहा हूं, दिस इज द रिसर्च व्हिच हैव बीन टू प्लेस एंड देयर इट इज फाउंड क्लियरली दैट वी कैन डेवलप द इंटेलिजेंस ऑफ द स्टूडेंट। और उसका साफ फार्मूला यहाँ पे लिखा भी हुआ है, व्हिच आर रिक्वायर्ड एट प्रेजेंट टाइम। टेक्नोलॉजी क्या कर रही है? somehow नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर कॉग्निटिव एबिलिटी। टेक्नोलॉजी का नेगेटिव इफेक्ट हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी पे पड़ता है। कॉग्निटिव एबिलिटी आप जानते हैं, लेट मी लॉन्ग अबाउट दैट। कॉग्निटिव एबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो हमारी बौद्धिक क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? कॉग्निटिव एबिलिटी कहते हैं। और ये हमारा क्या होता है, आज टेक्नोलॉजी की बात बहुत लोग करते हैं, टेक्नोलॉजी इज वेरी गुड थिंग, टेक्नोलॉजी इज डूइंग ग्रेट थिंग, इवन सब कहते हैं आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करो। मैं कहता हूं टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा लॉस किया है। टेक्नोलॉजी मींस लॉट ऑफ डिजास्टर इन आवर सोसाइटी। हाउ? That would be better when we are doing nothing in best. टेक्नोलॉजी है क्या? आप जैसे मैंने ये बताया, लैपटॉप और प्रोजेक्टर से शुरू हो रहा है, लेकिन बनाया तो मैंने ना। That comes from where? From the mind. टेक्नोलॉजी आपकी चीजों को इजी कर देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है, बट टेक्नोलॉजी कुछ पैदा नहीं करता। जैसे हम पेपर पे लिखते थे वैसे आज हम प्रोजेक्टर पर देख रहे हैं, बट दैट नॉट क्रिएट्स एनीथिंग। टेक्नोलॉजी से जिंदगी सरल होती है और जहां पे ज्यादा सरलता आती है वहां पे व्यक्ति के अंदर आलस्य होता है। पहले एक व्यक्ति अगर साइकिल चला के कहीं जा रहा है, अगर उसके पास कार है तो हर जगह वो कार से जाएगा, और जब वो हर जगह कार से जाएगा तो उसको तमाम प्रकार की बीमारियां होंगी क्योंकि उसकी फिजिकल एक्सरसाइज एकदम नहीं हो रहा है। पहले जो बच्चा दिमाग लगाता था, सोचता था, आज वो बच्चा कोचिंग पकड़ लेता है, आज वो बच्चा तमाम प्रकार के यूट्यूब और अन्य वीडियोस को देखता है, तो उसका माइंड एंगेजमेंट कहां रहेगा? ये टेक्नोलॉजी क्या कर रही है? दैट विल किल आवर क्रिएटिविटी। क्योंकि जब हम फोकस नहीं रहेंगे हम नई चीजों को खोज नहीं पाएंगे, पैदा नहीं कर पाएंगे, एंड वी आर फाइंडिंग दैट वुड बी वेरी वेरी डेंजरस थिंग फॉर आवर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम लगातार कार से चलेंगे, हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हमारी शरीर बीमार हो जाती है। ठीक उसी तरीके से अगर हमने दिमाग की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, दिमाग से कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं, नई चीजों को खोज नहीं रहे हैं, हमारा दिमाग भी बीमार हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई एवरीवन ऑफ अस आर हैविंग द लिमिटेशंस टू थिंक। हर आदमी की अपनी एक लिमिटेशन है सोचने की, करने की। सो आई वांट टू से दैट टेक्नोलॉजी इज गुड व्हेन यू परफॉर्म बाय योरसेल्फ। और ये सोच लेना कि चलो मैं गूगल से सर्च कर लूंगा, गूगल आपके लिए ठीक है, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से अच्छा तो गूगल पे क्लिक करो, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हम लोग पढ़ते क्यों हैं? हम लोग पढ़ते इसलिए ताकि हम कुछ नया कर पाए। एजुकेशन मेरे हिसाब से क्या है? एजुकेशन इज ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर द फ्यूचर चैलेंजेस। दैट्स इट। शिक्षा का तात्पर्य यह है कि आने वाले भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना। That would be the important things we have to keep in our mind. If we are using that kind of information and knowledge which are not having the important existence, then it's not good for our future prospect. अगली टॉपिक मैं तो आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, क्लासरूम में तो बहुत
जरूरी है, मेरे ख्याल से आप लोगों को भी क्लास वगैरह लेते होंगे तो आप लोग को लगता होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। आज हमारे गवर्नमेंट का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे बच्चे क्वेश्चन पूछना ही नहीं जानते। They don't know how to frame the questions. And due to that, what happened? They sit and just watching the people, somebody is speaking over here, all right, चलो कोई बोल रहा है, ध्यान देते हैं, but they are not raising their question. उसके बीच में जो प्रॉब्लम आती है, इनकोडिंग की प्रॉब्लम आती है, दिमाग में क्वेश्चन बना ही नहीं पाते हैं। तो टीचर्स को, लेक्चरर को, प्रोफेसर को आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों का एंगेजमेंट और इन्वॉल्वमेंट कैसे कराया जाए। सबको पता है रास्ते क्या है, मैं नहीं कहता कि आपको नहीं पता जो मैं बता रहा हूँ, but that is not executed. The result comes zero. Right now, I am interacting with the people and I found that they are unable to interact with the people, they are unable to represent themselves. ग्रेजुएशन करने वाला लड़का 16 साल से स्कूल जाता है लेकिन वो 10 तक नहीं बोल पाता, बहुत ही बड़ी सोचने वाली बात है। What we are doing with them? बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ लेगा, चाहे किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ लेगा, कोई भी बच्चा उसको खड़ा करके 10 तक आपके बारे में बोलिए, फाइंड दैट इज अनएबल टू स्पीक। What is the use of education? और कहाँ आने वाली पीढ़ी को हम लेके जा रहे हैं? Where we are driving? As a professor, as a lecturer, it will be very important कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी, क्योंकि जो भी बच्चे जैसे बच्चे वो हमारी जिम्मेदारी है। This is our moral and ethical responsibility. अगर आप उनका साथ नहीं देंगे, अगर आप अपने आप को ब्रेक नहीं करेंगे, तो उनका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। And you will find, आज की डेट में मैं कहता हूँ, बच्चे हाई स्कूल तक किसी टीचर से पढ़े, इंटर तक किसी टीचर से पढ़े, ग्रेजुएशन तक किसी से पढ़े, और उसके बाद निकलते हैं अकेले, मुझे नौकरी चाहिए। No guru is there who give them, मेंटर उसे कहते थे जो सफलता तक उसका मार्गदर्शन करता था। It would be important that we have to think like that. हम अपनी क्लास में मोटिवेशन करें, 5 मिनट का ही टाइम निकाल के उनको बताएं कि आज की डेट में किस चीज की जरूरत है, what you have to do। और गुरु मार्गदर्शक होता है, मैं नहीं कहता सबको बैठ के एक चीज पढ़ाएं, पर बता तो सकते हैं that you have to follow this thing, this will be valuable for you, and you have to do this thing, then you will find that you will be able to perform at very high level. तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं जो होनी चाहिए। And I want to say, फीडबैक हमारे लिए जरूरी क्यों है? हम एक डॉक्टर से दवा लेते हैं, हम काफी बीमार हैं, हमने डॉक्टर से जब दवा ली और फिर डॉक्टर क्या करता है, हमें हाई डोज की दवा देता है। सपोज कीजिए कि 1000 mg की गोली दिया, फिर हम दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर हम डॉक्टर को नहीं बताएंगे मुझे आराम हुआ, तो डॉक्टर फिर से वही दवाई देगा या उससे भी हार्ड दवाई देगा। हमारा फीडबैक नहीं तय करेगा ना डॉक्टर हमें कैसे काउंसल करेगा। और जब हम क्लास में स्टूडेंट का फीडबैक नहीं देते, या तो वो पहले से ही आई अंडरस्टैंड देयर बेस इज वेरी बैड, आई अंडरस्टैंड दैट आई हैव प्रॉब्लम्स, वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग, कि उनको स्कूलिंग में प्रॉब्लम होती है, दे आर नॉट एबल टू डेवलप देमसेल्फ, दे आर नॉट एबल टू डेवलप देयर माइंड, दीस आर द प्रॉब्लम्स आर देयर। बट आफ्टर ऑल, जब तक वो हमारे पास है, सबसे पहले उनको हम ये चीजें सिखाएं कुछ क्लासेस की कि हाउ टू गिव द फीडबैक इन द क्लास। आप फीडबैक देना सीखो, तभी टीचर आपकी मदद कर पाएगा। इफ यू आर नॉट गिविंग द फीडबैक, तो जैसे डॉक्टर, अगर डॉक्टर को ना बताएं कि हमें दवा का आराम हो रहा है कि नहीं, डॉक्टर हमें काउंसिल नहीं कर पाएगा। कि उसी प्रकार से अगर स्टूडेंट हमें नहीं बताता है कि हमें क्या आ रहा है क्या नहीं, तो हम टीचर चाह के भी उसके लिए काफी डेवलपमेंट कुछ खास नहीं कर सकते। तो इसके लिए ज्यादा जरूरी है कि हम लोग को इस चीज पर ध्यान देना होगा कि फीडबैक जो कि एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे क्लासरूम का, उसके लिए हम बच्चों को डेवलप करें। और एक चीज और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, इसको जरूर अपने आप संज्ञान में रखिएगा व्हेनेवर यू आर टेकिंग द क्लासेस, दैट वुड बी द थिंग्स कि जब हम लोग फीडबैक देते हैं तो हम लोग वर्क के हिसाब से देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। वर्क के हिसाब से क्या होता है, लड़का काम नहीं किया, उसने नहीं बोला, उसको कह देते हो तुम गलत कर, काम के हिसाब से देते हैं, स्टूडेंट के हिसाब से नहीं देते। फीडबैक मस्ट बी ऑन स्टूडेंट, स्टूडेंट का इंप्रूवमेंट कैसे होगा वो फीडबैक होना चाहिए, काम हुआ कि नहीं उसके फीडबैक नहीं होना चाहिए। और जब हम अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को इस तरीके से कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम गलत हो, ये तुमको नेगेटिव इन्फ्लुएंस इन देयर माइंड, एंड दैट व्हाट हैपेंड, ही इज अनएबल टू परफॉर्म एंड ही इज अफ्रेड ऑफ परफॉर्मिंग। उसको डर लगता है परफॉर्मेंस करने में, क्योंकि वो डर जाता है स्टार्टिंग। सो फीडबैक मस्ट बी स्टूडेंट ओरिएंटेड, नॉट वर्क ओरिएंटेड। अगर हमने वर्क ओरिएंटेड फीडबैक दिया, काम तुम नहीं कर पाए, अगर इसके हिसाब से दिया तो बच्चे कभी सुधार नहीं आएगा, वो कहीं जाएगा क्लास। और अगर हमने स्टूडेंट्स के ऊपर ध्यान दिया तुम किस कारण से ये काम नहीं कर पाए, तुम्हें ये सुधारना होगा, आई थिंक दैट विल बी द वेरी स्पेशल थिंग्स। तो बच्चा आपको फीडबैक देगा कि उसके अंदर आप इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम लोग फीडबैक बच्चों से लेते हैं, इंटरेक्शन पैदा होता है। When we encourage them, then we have to give the feedbacks that will develop the interaction, a strong bonding with the teacher, and that will help a lot to develop or
engage the mind of the students. तो ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि हमारा जो भी फीडबैक है वो कभी भी वर्क बेसिस नहीं होना चाहिए, वो फीडबैक हमारा हमेशा स्टूडेंट बेसिस होना चाहिए। स्टूडेंट के अंदर इंप्रूवमेंट कैसे लाएंगे, गुरु का मतलब मार्गदर्शक होता है, तो तात्पर्य यही है कि हमें मार्गदर्शक क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास वो अनुभव है कि हम किसी को कहीं पहुंचा सकते हैं। मार्गदर्शक उसे कहा जाता है जिसके पास मंजिल उसके दिमाग में होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल गुरु। और अगर आज की डेट में हमने अपनी मंजिल को अपने दिमाग में नहीं रखा, जो बच्चा आज पढ़ रहा है उसका भविष्य कहीं ना कहीं तो होगा। 2020 में कैसा इन्वायरमेंट होगा, तो जो मैं अपग्रेडेशन की बात कर रहा हूँ, आज तो मैं आपको पूरा इंट्रोडक्टरी सारी चीजें बता रहा हूँ। एक एक चीज पे मैं आपको पूरी क्लैरिटी में देना चाहूंगा, इफ यू वांट कि एक एक चीज को अपग्रेड करके हम उस लेवल पे स्टैंड करें जहां आने वाले 10 साल में हिंदुस्तान और दुनिया में क्या होने वाला है हमें पता रहे, तब हम उन बच्चों को वहां तक पहुंचा पाएंगे और तभी हमें गुरु की भूमिका निभा पाएंगे। अदरवाइज अगर हमें नहीं पता कि आज सपोज कीजिए मैं किसी बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा लेता हूँ, दैट इज नॉट इनफ फॉर सर्वाइविंग इन प्रेजेंट मार्केट। कोई बुक की नॉलेज नहीं मांगने वाला आपसे। People want works, people want performance, people want communication, people want leadership. These all the skills are required at the same time, and we are able to develop. Then it will be very hard for us to survive. Now the third topic which I am telling, that is importance of emotional intelligence in teaching students. Emotional intelligence ये एक टीचर और प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, सामवेगिक योग्यता। We are not dealing with the machines, are we? हम क्लास में जाते हैं, हम किसी मशीन को डील नहीं करते हैं, हम किसको डील करते हैं, ह्यूमन बीइंग को डील करते हैं। तो जब हम ह्यूमन बीइंग को डील कर रहे हैं, तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? We have to interact with each other. क्लास में घुसते ही 5-10 मिनट का हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस पे, कि हम स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर पाए, उनके साथ उनके घुल मिल पाए, then they are able to take the things seriously. अब अगर हमारा कनेक्टिविटी खराब है, हमने लेक्चर चालू कर दिया बट हम कनेक्ट नहीं है स्टूडेंट से, स्टूडेंट डोंट नो एंड वी इनिशिएट द लेक्चर, then what happened? They are not able to take a single point from your class. They go out of the class without taking anything. This is the problem which comes up when we are not having strong emotional intelligence. Emotional intelligence होता क्या है? Let me tell you, there are 4 things which are required. और यहाँ तक मैं कहता हूँ, आपके इंटेलिजेंस क्वेश्चन से ज्यादा जरूरी होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। If we talk about the IQ, इमोशनल क्वेश्चन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स के लिए सक्सेस होने के लिए। अक्सर कर हम लोग यही चीज जानते रह जाते हैं, तुम्हें क्या आता है, व्हाट डू यू नो, मींस कितना इंफॉर्मेशन रखते हो। मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा, विश्व में 11 करोड़ 30 लाख बुक है, कोई पढ़ सकता है यहाँ पे 11 करोड़ 30 लाख बुक? Why we are claiming that we are scholar? There are 11 crore 30 lakhs books are available in the whole world, and when we are saying that after reading 200 book, 100 book, we will become a scholar, I think this is ridiculous. It's very important to understand it. शिक्षक हो या विद्यार्थी हो, हमें सीखना चाहिए। We have to learn, क्योंकि दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज हैं जो अभी सीखना बाकी है। And being a long life learner, that would be the very important point I want to say over here. तो इमोशनल इंटेलिजेंस की जब बात होती है तो 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं: अंडरस्टैंडिंग आवर इमोशंस, कंट्रोलिंग आवर इमोशंस, रीड द इमोशंस ऑफ अदर्स एंड मैनेज द अदर इमोशंस। ये 4 मुख्य एस्पेक्ट्स होते हैं और मेरे ख्याल से इस पे जरूर वर्क होना चाहिए। एक लड़का है, वो पढ़ाई करता है नहीं करता है, जब हम पूछते हैं सक्सेस कैसे आती है, कोई भी अगर किसी को पूछे यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, देन व्हाट इज फील, सफलता कैसे आती है, किसी से पूछा जाए हाउ सक्सेस कम्स, उसका एक सीधा 3-4 चीजें हम लोग पॉपुलरली बोलते हैं। सफलता, पेशेंस, परसिवरेंस, परसिस्टेंस, मतलब लगन से, धैर्य से और लगातार करने से सफलता मिलती है। ये लगन है क्या, धैर्य है क्या, और लगातार करने की जो ये एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है वो है क्या? ये इमोशनल क्वोशिएंट है। पढ़ने का मन ही नहीं करेगा तो बुद्धि कहाँ यूज करेंगे? If we don't want to read,
क्योंकि एक बच्चा जब इमोशनली वो आपसे हर्ट होता है, जब क्लास में हम लोग स्ट्रॉन्ग चीजें यूज करते हैं, if he got hurt by that, then he simply want to not speak anything in the classroom. So it would be very important that we have to understand. आज मैं अभी इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कर रहा हूँ काफी जगहों पे, इवन प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर तक, आई हैव अ लॉट ऑफ प्रोग्राम टू मीट विद द पीपल टू इंटरेक्ट एंड टू इम्प्लीमेंट आइडियाज टू ऑल अराउंड इंडिया। मैं जौनपुर में जहाँ पे भी गया, कुछ महान लोगों के पास भी गया, तो रिनाउंड पीपल ऑफ जौनपुर सिटी, सबने यही सलाह दी, ऐसा काम करने जा रहे हो जिसपे बलिदान होना पड़ेगा। Because the thing which is going on here in Jodhpur city is not in your caliber to change it. I want to say, मैंने जो आपको वीडियो दिखाई और मैं आपको कहना भी चाहता हूँ, चेंज आप में से अगर 10 लोग भी तैयार हो गए ना, तो ये पूरा टीडी कॉलेज टॉप का कॉलेज हो जाएगा। और मैंने काफी लोगों से चर्चा भी करी जो यहाँ के रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और लोग हैं, मैंने पूछा सर कभी आपने ऐसा नहीं सोचा कि हम जौनपुर के टीडी कॉलेज को उत्तर प्रदेश के सबसे बेस्ट कॉलेज में बनाएं, इंडिया के सबसे बेस्ट कॉलेज में बनाएं? मुस्कुराए और बोले प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। I want to say, if we are having the committed team and making the innovations, we are also having the brain which can act on the things which we are not doing at present time. अगर हम इस चीज को यहाँ पर रेगुलर इम्प्लीमेंटेशन में करें, मेरे ख्याल से एज अ प्रोफेसर, एज अ ट्रेनर, इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू अपग्रेड ऑल दीज थिंग्स और हम कुछ भी कर सकते हैं। So here, these are the things which is required, and I want to say, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा, ये प्रोफेसर कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कॉन्सेप्ट है टीचरप्रेन्योर। आपने एंटरप्रेन्योर के बारे में सुना होगा। एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं? लेट मी इलैबोरेट, जिसे हम शायद यहाँ पे इंटरप्रेन्योर प्रोनाउंस करते हैं। उद्यमी व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर कहते हैं। Here is the concept of the teacherpreneur. I want to share you something. मैं बात कर रहा था अमेरिका में, पैट्रिस पामर थी, वहाँ के प्रोफेसर हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। तो अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम को लेकर बात हो रही थी। जो मेरा टारगेट है कि हाउ वी कैन कॉम्पीट द अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम दिस जौनपुर, दिस एरिया, हाउ वी विल बी एबल टू डू समथिंग व्हिच विल हेल्प फॉर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। टीचरप्रेन्योर अमेरिका की एक संस्था है, CTQ, सेंटर फॉर टीचिंग क्वालिटी। वो अमेरिका के एजुकेशन में 30 वर्ड अपग्रेडेशन करती है। 2014 में उसने इस कॉन्सेप्ट को इजाद किया, टीचरप्रेन्योर, और इसमें टीचर प्लस एंटरप्रेन्योर इज इक्वल टू टीचरप्रेन्योर। एंड आई वांट टू से 4-5 चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें ध्यान में रखने वाली। जब हम टीचरप्रेन्योर की बात करते हैं, हमारे सबसे बड़ा चैलेंज ये है टीचर के सामने, जैसा अभी प्रिंसिपल सर ने बोला, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर मान लीजिए हमने 2002 में BSc की, हम पढ़ा रहे हैं 2002 से, और आज अगर हम 2017 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे पढ़ाने की मेथोडोलॉजी अगर 2002 वाली है, तो 2017 के बच्चों को हम कुछ नहीं बना सकते। If we not upgrade themselves, then it is very hard for us to make them successful at present time. और जो टीचर, ऐसे बहुत से प्रोफेसर हैं जो टाइम टू टाइम रिसर्च करते रहते हैं, चीजों को देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, और वो जो समय को समझेगा वही लोगों को एक सफलता प्रदान कर सकता है। पहली चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा, टीचर्स आर द लीडर, दे आर नॉट ओनली अ पर्सन हु कैन परफॉर्म इन द फोर वॉल। टीचर एक लीडर होता है, प्रोफेसर एक समाज का लीडर होता है, और उसको सर्वप्रथम टीचरप्रेन्योर का जो कॉन्सेप्ट करता है, मैं पैसे कमाने से लेकर सारी चीजों की बात कर रहा हूं कि आज की डेट में अगर एक टीचर अपने आप को एंटरप्रेन्योर से जोड़ता है, जहां इनोवेशंस, जहां पे रिस्क टेकिंग, क्रिएटिविटी, रिफ्लेक्शन, ये सारी क्वालिटीज होती हैं, तो एक टीचर रात को सोता है, उसके अकाउंट में लाखों रुपए आएंगे। हम टेक्नोलॉजी का यूज करें, और टीचरप्रेन्योर का जो कॉन्सेप्ट है, न्यू काइंड ऑफ टीचिंग व्हिच आर रिक्वायर्ड एट प्रेजेंट टाइम, वी हैव टू गो थ्रू दैट। और कोई भी टीचर, कोई भी प्रोफेसर सिर्फ 4 कमरे में बंद होने के लिए नहीं है। आपके पास अनटैप्ड स्किल्स है। आप अगर अपनी स्किल्स का यूज ठीक से करें, आप अगर अपनी योग्यता का यूज ठीक से करेंगे, पूरी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। People as a whole world want to take something from your sides, and I want to say, this is my hard belief कि अगर आप आज से ही अपने अंदर एक टीचरप्रेन्योर की एबिलिटी पैदा करें, that I have to connect with the world, I have to do something better, और मेरे आइडियाज, मेरी बातों को पूरी दुनिया पढ़े और पूरी दुनिया के साथ मैं मिलूं,
ताकि ये वैश्विक विकास कर पाऊं, आई वांट टू से इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड वी कैन डू इट वेरी इजीली। तो टीचरप्रेन्योर वो है जो आज के परिवेश में 3-4 चीजें यहाँ लिखी गई। इनोवेटिव क्लासरूम, आज के हिसाब से क्लास को कैसे डिजाइन करना है ये टीचर तय करे। रिस्क लेके अपने खुद के कॉन्सेप्ट को इजाद करें, बुक से हट के अपनी बातों को रखे, दैट वुड बी द रिस्क, बट वेयर देयर इज नो रिस्क देयर इज नो डेवलपमेंट एट ऑल। और उसके बाद क्रिएटिविटी एंड रिफ्लेक्शन, सृजनात्मक क्षमता टीचर के पास हो, वो देखे कि क्या चल रहा है। और एक सिंपल सी चीज होती है, हैव इट एंड मेक इट योर ओन। एक कॉन्सेप्ट एक टीचर का होता है, हैव इट एंड मेक इट योर ओन। किताब से आपने लिया और उसको अपने अपना बनाया, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द टीचर अकॉर्डिंग टू मी। So, in that regard, it would be very important to understand that whatever the information we are having, we have to make it our own. We have to create, we have to add some ideas, our ideas on that, and along with that, we have to represent it among the people. So, teacher tenure is a concept which are much required in present time. और मैं आपको कहता हूँ जिस इनोवेटिव आइडियाज और थॉट्स की मैं बात करता हूँ, जिस लीडरशिप की मैं बात करता हूँ, आपके अगर यहाँ पे जो आप 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे यहाँ लेक्चर देते हो, इसके बाद भी आप चाहो तो समाज और देश को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। और आज दुनिया में एक्सेसिबिलिटी करना बहुत मुश्किल नहीं है, और मैं ये भी कहता हूँ कि आपके आइडियाज बेकार नहीं है। यू आर हैविंग द एक्सीलेंट आइडियाज, ओनली यू नीड टू डेमोन्स्ट्रेट इट। और जब आप लोगों के बीच में अपने आइडियाज रखेंगे तो आपके आइडियाज और बढ़ेंगे। और इस दौर में हमें ये कोशिश जरूर करनी चाहिए, वी हैव टू रेज आवर स्टैंडर्ड and we have to make ourselves accessible in international market that will make us a good teacher. और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमारा जौनपुर की जब हम बात करते हैं, when we are talking about the जौनपुर city, then it is in our hand. It's very important. आज हमारे पास इंटरनेट है, मैं भी जौनपुर में रहकर 54 देशों के साथ कोलैबोरेशन करके अंतरराष्ट्रीय क्लासेस भी देता हूँ। साउथ अफ्रीका में, मलेशिया में मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। आई इंटरेक्टेड विद सेवरल लेक्चरर्स और इतना ज्यादा लोगों से बातचीत हो चुकी है कि आई थिंक दैट होल वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल। I thought that this whole world is very small. That thing you can also do even better than. So that is very important thing we have to understand. हम लोग भी वो चीज कर सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि अगर आप में से कुछ लोग चाहेंगे, I would like to make a committed team जिससे ये पूरे एजुकेशन सिस्टम में एक हम उदाहरण प्रस्तुत कर पाए, सिर्फ बोल के नहीं, सिर्फ लेक्चर दे के नहीं, करके कि लोग हमसे इंस्पायर। एंड आई एम सेइंग टू यू दैट मेरा अभी BHU में एक सेमिनार होने वाला है। I want to say to you here, not a single institution is greater and smaller. People make the difference. मेरा अभी अनुभव रहा, कुछ दिन पहले मैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में वहाँ की जो प्लेसमेंट सेल है, हेड है जो वहाँ की रंजना प्रकाश जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, अभी रिटायर हुई हैं 6 साल से। I interacted with her. She is a nice lady and I found there is a professor of BHU University suddenly comes over there. His name is J.S. Mathur. He is also placement head in Purvachal in BHU University. He come over there. I saw the difference of body language. मैंने देखा कि यहाँ के जो लेक्चरर और प्रोफेसर मैम भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गए। On the name of the BHU, he is coming from BHU. You are from BHU. I want to say here, why we are having this kind of thought that we can't do better than others. हमें इस थॉट को निकालना होगा। और मैं यहीं पे कह रहा हूँ, इसी संस्था को मैं कह रहा हूँ, मैं आप ही लोगों को कह रहा हूँ, ये जो पेसिमिस्टिक थॉट्स है ना, we can't do better than what we think, मैं आपको कहता हूँ just utilize your mind, you can do better than anyone do in the whole world. वो चीज़ जरूरी है, हम यहाँ पे कमिटेड हैं। और मैंने जो पाया आफ्टर इंटरेक्शन, दोनों लोगों ने एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम्स की बात की, but nobody is talking about the solution. दोनों लोगों ने कहा अब तो सब पॉलिटिक्स हो गया एजुकेशन, टीचर्स शुड डिस्कवर द वे। गुरु है वो इसलिए है क्योंकि वो समाज को एक रास्ता देने वाला है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग को बैठ के आज की जो जरूरतें हैं, और वही टीचर महान है जो टीचर सरल, जो टीचर एक्सेसिबल है, विद्वान वो है जो सुनता हो। तो ज्यादा जरूरी ये है हमें एक सरल व्यक्तित्व के तौर पे चीजों को ग्रहण करके और अपने अंदर की चीजों को और बेहतर करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। ही जानेगा तो बच्चों को कराना कौन सिखाएगा? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें कराना भी सिखाना होगा। बिकॉज until they do, we never get success. और हम सिर्फ पढ़ाने को समझते हैं,
पढ़ाने से हम कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे किसी के अंदर जब तक हम कराना चालू नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी जिंदगी में कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठा मुझे बता दे बिना किए कोई चीज सीखा है जिंदगी में, कोई एक चीज जो बिना किए सीखे हो। मैं आपको बोलूं साइकिल चलाने का तरीका पढ़ लो, हैंडल ऐसे पकड़ना है, पैडल ऐसे मारना है, साइकिल चला लोगे, चला लेंगे आप। Until you act on it, you never perform. जब तक आप किसी चीज पे वर्क नहीं करोगे आपको वो चीज आएगी ही नहीं। एंड दैट इज व्हाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कराने के ऊपर जोर देना चाहिए। और ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे कह रहा हूँ कि हमारा जोर देना बहुत जरूरी है। 21वीं सदी की सबसे ज्यादा जरूरी चीज को मैं बताने जा रहा हूँ, और ये चीज आप लोग कृपया करके दिमाग में रखिएगा। शब्द आपको मिल जा रहे हैं, नेट पे सर्च कीजिएगा, और भी अगर आप चाहेंगे आई एम एक्सपर्ट ऑफ दिस टॉपिक, आई विल गिव यू मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑफ दैट। और फेलियरनेस के बच्चों को बचाना है, अगर भविष्य को बनाना है, टीचर्स को महान करना है, इवन वर्ल्ड लीडर बनना है, ये चीज अलार्मिंग है। और मैं कहता हूं अगर इसको कोई नहीं कर लेगा तो आने वाले 2-3-4 सालों के बाद हमारी प्रतिभा को कोई पूछेगा। आज की दुनिया की चैलेंज है ये। आई वांट टू से सॉफ्ट स्किल, लेट मी इलैबोरेट अबाउट दैट। इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और इसको ग्रहण कीजिएगा, दिमाग में रखिएगा। और ये टर्म आज पूरी दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, और इसी की वजह से अमेरिका जैसा विकसित देश, वहां 40% लोग बेरोजगार हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टेज ऑफ स्किल्स। एंड आई वांट टू से ओवर हियर अबाउट दिस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 100 साल पहले रॉबर्ट मान, थोड़ा सा इस टर्म को ध्यान से सुनिएगा और मैं आपको कहूंगा इस चीज को जरूर और जरूर थोड़ा ही सही इसके बारे में बच्चों को अवेयर कीजिएगा और अपने भी इसमें आप डेवलपमेंट कीजिएगा। दैट वुड बी फैंटास्टिक थिंग। और मैं आपको कहता हूं जो लेक्चरर आज यहाँ बैठते हैं पूरे विश्व के बहुत ही बड़े स्कॉलर के रूप में आगे आ सकते हैं इफ दे अडॉप्ट दीस ऑल थिंग्स व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू। लेट मी टॉक व्हाट इज सॉफ्ट स्किल एंड व्हाट इज हार्ड स्किल। हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल के बारे में पहले मैं आपको बता दूं। हार्ड स्किल होता है वो स्किल जो हम लोग कहां से लेते हैं, बुक से पढ़ते हैं। किताब पढ़ा, टीचर का लेक्चर सुना, इंटरनेट पे देखा, ये सारी स्किल किस पे आती हैं? हार्ड स्किल पे आती है। सॉफ्ट स्किल क्या होती है? ये हमारी पर्सनल स्किल होती है। हमारा कम्युनिकेशन पावर कैसा है, हमारे लीडरशिप स्किल कैसी है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग जो आज स्टूडेंट के अंदर एकदम मिस है। क्रिटिकल थिंकिंग किसे हम कहते हैं? कोई चीज हुई तो कैसे हुई, दिमाग सोचता है उसको। दैट इज कंसीडर्ड एज द क्रिटिकल थिंकिंग व्हिच इज मच रिक्वायर्ड एट प्रेजेंट टाइम। वो नहीं है। इसके बाद इंटरपर्सनल स्किल, और मैं आपको जानकारी के लिए कहना चाहता हूं पूरा हिंदुस्तान सॉफ्ट स्किल की तरफ घूम पड़ा है। आईएएस का एग्जाम आप देख लीजिए, मैं आपको बताता हूं सीसेट में क्या क्या आता है, और टोटल चीजें सॉफ्ट स्किल बेस्ड है। वहां हार्ड स्किल कुछ भी नहीं है। हार्ड स्किल का कोई महत्व नहीं है, महत्व है तो एक छोटे से पार्ट में है। एंड आई वांट टू से गवर्नमेंट ने अपने आप से इस चीज को किया है। इंटरपर्सनल स्किल से 12 क्वेश्चन आईएएस में आते हैं। ये क्या है? अंतर संबंधी योग्यता क्या है? ये हमारी बुक से पढ़ाई जाने वाली चीज नहीं है, हमारी अंदर की स्किल है। कंप्रीहेंशन स्किल क्या है? व्यापक समझ क्या है? जो अच्छी पैसे जाते हैं वो कहां से आते हैं? हमारे अंदर की स्किल है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्या होती है? डिसीजन लेने की क्षमता हमारी जो चेक होती है वो क्या है? हमारे अंदर की स्किल है। उसके बाद रीजनिंग, चाहे तार्किक रीजनिंग हो, चाहे विश्लेषणात्मक रीजनिंग हो, एनालिटिकल हो, या फिर आपकी लॉजिकल हो, वो क्या है? दैट इज आल्सो इनसाइड आवर ब्रेन। ये पूरा परीक्षा किस पे हो रहा है? सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर हो रहा है। क्या हम स्कूल कॉलेज में एक दिन भी इस पे ध्यान दिए? हैव वी एवर डेवलप्ड आवरसेल्फ फॉर दैट? हम लोग एग्जाम देते हैं, एग्जाम में क्या पूछा जाता है? आपने कितना सीखा है वो लिखो। कहां से लिखेंगे? बाय आवर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। सो आई वांट टू से दैट ये सॉफ्ट स्किल पर कोई डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहा है? आज से 100 साल पहले रॉबर्ट मान ने 40,000 इंजीनियर्स के ऊपर अमेरिका में एक सर्वे किया था, और उस सर्वे में ये पाया था कि ज्यादातर लोगों के अंदर जो इंजीनियर ने अपना एनालिसिस करके दिया था, उस सर्वे में ये मिला था कि इस पूरी दुनिया में जो इंजीनियर्स को सफलता के लिए चाहिए उसमें 85% सॉफ्ट स्किल चाहिए, सिर्फ 15% हार्ड स्किल की जरूरत है। और एक सवाल मैं ये कहता हूं, 16 साल पढ़ा, 1 साल की पढ़ाई नहीं आती, क्या यही हार्ड स्किल? 17 साल से कॉलेज जा रहा है, 10 लाइन नहीं बोल पाता, क्या यही हार्ड स्किल? लेकिन अगर हमने थोड़ा सा सॉफ्ट स्किल के ऊपर जोर दिया होता, स्कूल वालों ने दिया होता, कॉलेज वालों ने दिया होता, आज हमारे बच्चे फ्रैंकली दुनिया का सामना करते एंड दे विल गेट
the success toward the future prospect. That is not happening. And I want to say, employer, educator बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी है आज की डेट में। Employer मतलब नौकरी देने वाला कॉर्पोरेट सेक्टर क्या चाहता है, और एजुकेटर मतलब टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर क्या पढ़ा रहे हैं, उन दोनों का कोई तालमेल नहीं है। इसलिए बेरोजगारी बहुत ही बड़े पैमाने पर है। जो उनको चाहिए वो हम दे नहीं पा रहे, और हमारा उनका और सरकार का जब तक तालमेल नहीं बैठेगा तब तक एजुकेशन में सक्सेस को दूर दूर तक पा पाना बड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा, इस चीज के ऊपर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च था जिसमें भी जो आपका रिसर्च कराया गया 21st सेंचुरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल क्या होनी चाहिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मिला 85% सॉफ्ट स्किल, 50% हार्ड स्किल्स। और ये एक हमारे लिए चैलेंज है, और हमारे पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज और स्कूल में आज जो फेल होने से नहीं हो रही है। 15 लाख बीटेक के बच्चे एक साल में हिंदुस्तान से पास होते हैं, उनमें से 3 लाख को नौकरी मिलती है, 12 लाख बेरोजगार रह जाते हैं। 1 लाख लड़के हमारे यहाँ से MBA करके मैनेजर का पोस्ट लेके निकलते हैं, उनमें से 20,000 को नौकरी मिलती है, 80,000 बेरोजगार हो जाते हैं। और उसके बाद अगर हम लेबर क्लास की भी बात करें, हम एक कायदे से बढ़िया लेबर फोर्स भी तैयार नहीं कर पा रहे हिंदुस्तान से। दिस इज द ट्रुथ ऑफ आवर नेशन, एंड आई वांट टू से हम लोग अपने छोटे से शहर से इस चीज को बदलने के ऊपर वर्क करें। एंड दीज आर द स्किल्स व्हिच आर वेरी रिक्वायर्ड, वेरी मच रिक्वायर्ड, एंड आई वांट दैट वी हैव टू कम टुगेदर एंड परफॉर्म ऑन दिस आल्सो। मैं चाहूंगा इस पे आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करें, इन सारी स्किल्स के बारे में जानें, गूगल पे सर्च करें, आपको पता चलेगा किस तरीके से आज पूरी दुनिया इसकी डिमांड कर रही है। और अगर हम एक बात करते हैं कि आज हमारा इंडिया एक डेवलपमेंट कंट्री के डेवलप कंट्री की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारा वर्क फोर्स के साथ। और अगर हमारे यहाँ जिस तरीके की आने वाली पीढ़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेसर और टीचर्स के ऊपर है, जिस तरीके का एजुकेशन चल रहा है, आप जरा कल्पना कीजिए वो समाज कैसा होगा जहाँ 50 करोड़ बेरोजगार होंगे। क्या वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं? क्या वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं? आने वाली पीढ़ी का क्या होगा if we are not making change in them? It would be very very challenging task for us, and we have to understand it and we have to perform accordingly. और सिर्फ लेक्चरर और प्रोफेसर आप ही लोग ऐसे हैं जो बचा सकते हैं आने वाले भविष्य को, चाहे वो हायर एजुकेशन से हो, सेकेंडरी एजुकेशन से हो, या फिर एक प्राइमरी एजुकेशन से हो। We need to make the changes in that, and I think that it would be very important thing for us to understand. So these are the skills which are required at present time. मैं एक स्किल के बारे में बता देता हूँ, because it would be a very important thing for you. And ये एक व्यक्ति के अंदर अगर स्किल है तो आज की डेट में वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए आराम से इनकम कर सकता है। That is not very tough task for anyone. And because of these skills, मैंने खुद अपनी लाइफ में अगर फॉरेन कंट्रीज में या मैं किसी से भी इंटरेक्शन किया या फिर मैं आज इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ वर्क कर रहा हूँ, because of all that skill I am able to interact and work with the renowned personality of the world. Communication skill and interpersonal skill. This is the first skill which I want to say. Communication क्या है? Is it important? I am saying to you that it is the most important thing at present time. What to speak, how to speak, when to speak, and when to stop. That is all about the communication. क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कब चुप करना है, इसी को हम क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। इनकोडिंग, डिकोडिंग दो प्रोसेस होता है। इनकोडिंग का मतलब होता है मैसेज को बनाना, डिकोडिंग का मतलब होता है मैसेज को समझना। तो अभी जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप अपने दिमाग से उसको कैसे कैसे लोगे, दैट थिंग यू नो वेल। हर इंसान अपने अनुभव के हिसाब से इस लेक्चर को ले सकता है, क्योंकि आई एम रिस्पांसिबल फॉर व्हाट आई एम स्पीकिंग, आई एम नॉट रिस्पांसिबल हाउ यू आर गोइंग टू डिकोड द थिंग्स। मैं जिम्मेदार हूं मैं क्या बोल रहा हूं, उसको किस तरीके से लेते हैं वो आपके विवेक और आपके अनुभव पे। सो द सेम थिंग इज हैपनिंग जब हम लोग कम्युनिकेशन की बात करते हैं, और ये कम्युनिकेशन हम बुक से नहीं करते। किताब खोला, एक कम्युनिकेशन हो रहा है, बुक समझ में आ रही तो पढ़ते जाएंगे, नहीं समझ में आ रही, वो डिकोड कर रहे हैं ना लैंग्वेज को, किताब की लैंग्वेज को डिकोड कर रहे हैं। अगर वो समझ में आ रही तो इंग्लिश है, अगर समझ में नहीं आ रही तो फिर हम कहेंगे हम नहीं पढ़ेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन। आज हमारे स्टूडेंट कम्युनिकेशन स्थापित करने में बहुत ही पीछे, दे आर एबल टू डिकोड द मैसेजेस। हमें पहले इस चीज को डेवलप करना चाहिए, और चूंकि मानव एक सोशल एनिमल माना जाता है, इंटरपर्सनल स्किल का भी बहुत ज्यादा महत्व हमारे जीवन में है, क्योंकि कम्युनिकेशन से हम किसी के साथ एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। दिस इज द लाइफ ऑफ 21st सेंचुरी। आज आप किसी भी जगह डाल दीजिए जॉब के लिए, आज की पीढ़ी के बच्चों को 50-60 के, you will find that the communication is the first thing which they are required. Second thing I want to talk here, critical thinking, जो आज हमारे यहाँ
बच्चों में एकदम नहीं है। और मैं आपको कहना चाहूंगा एक सीधी सी बात है, यकीन कैसे पैदा होता है, पढ़ाई की चीज पर यकीन कैसे पैदा होता है। मैं कहूँ यहाँ पे टुडे नोबडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट, दैट पहले देखेंगे तब मानिए। तो ये जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है कि सर ने अगर कोई चीज पढ़ाई वो हुई कैसे, उसके बारे में खुद के दिमाग से जब तक बच्चे नहीं सोचेंगे उनको यकीन ही नहीं होगा। They just mug up the books and they give the answer of the question. So it will be very important for us to understand that this kind of critical thinking is very important for the present situation. Problem solving skill. आज आप मुझे बता दीजिए हम अपनी लाइफ में कितने प्रॉब्लम के साथ सफर करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एट प्रेजेंट टाइम। किसकी जिंदगी में कौन सा प्रॉब्लम आएगा मुझे कोई बता सकता है? हम 70 साल के ही क्यों ना, हमारे पास बहुत तजुर्बा हो, लेकिन कल क्या हो जाएगा हमारे साथ किसी को पता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। यहाँ पे क्या होता है, बाय आवर क्रिएटिविटी, अगर हम किसी मुसीबत में घिर जाते हैं या किसी दिक्कत में आ जाते हैं तो हम उसको ही अपना दिमाग लगा के क्या करते हैं, वी ट्राई टू ओवरकम बाय आवर आइडिया, बाय आवर क्रिएटिविटी। देन वी आर हैविंग द लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एट प्रेजेंट टाइम। फिर decision making skills, comprehension skill, flexibility skill, creativity skill, research skill and motivation skill. Soft skills are very much required in private job and competition. ये सारी skills हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितनी भी स्किल यहाँ पे लिखी गई है सारी हमारी इंटरनल स्किल है। अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाए तो किसी भी किताब को पढ़ के अपने आप को इतना ज्यादा डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि किताब का पर्पस आपको बनाना है, किताब का पर्पस कभी अपने आप को पढ़ाना नहीं। What you can take from the books, that is important issue. What you can take from the different materials, that is important issue. That doesn't, मुझे वो बुक मैंने पढ़ी थी वो मुझे आ गया, वो बुक पढ़ने के बाद कौन सा आइडिया, कौन सा इंटेलिजेंस आपके अंदर डेवलप हुआ, that would be the important thing. So here I want to say, जब मैं ये कहा कि हम लोग की दुनिया में 11 करोड़ 20 लाख बुक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, there are two things which are required. The first thing is that what you want in out, and the second thing is that how we can use it. ये दो चीजें मैं बता रहा हूँ। हम अपनी जिंदगी में चाहते क्या है और हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, यही इंटेलिजेंस ऑफ विजडम है। हम जो चाहते हैं उसके इंफॉर्मेशन हमें चाहिए और उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज कर पाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वी मे मेक आवर लाइफ मोर कॉम्पिटेंट एंड मोर इन मोर गुड वे। आप रिसर्च करते हो, रिसर्च कैसे होता है, वहां पे हमारी रिसर्च स्किल जो आती है, खूब मटेरियल आपको मिले होंगे, आपको काम कर रहा होगा, आपने पीएचडी किया होगा, काफी मटेरियल मिलते हैं। कौन से मटेरियल को हमें लिखना है, किस मटेरियल को हमें पिक करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन को हमें यूज करना है और किस तरीके से हमें इसको रेगुलेट करना है, दैट ऑल द थिंग्स वो कहां से आता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर सॉफ्ट स्किल। वो हम अपने आप से चुनते हैं ना मुझे क्या रखना है क्या नहीं रखना है। एंड आई वांट टू से दैट रिसर्च स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है और जिसको लाइफ टाइम लेके चलना चाहिए। जब एक सिस्टम बनाया गया आपको पीएचडी करना जरूरी है। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि 3 साल की पीएचडी क्या 20 साल की जिंदगी को बदल सकता है? आई जस्ट वांट टू से टू यू दिस। हालांकि बहुत कुछ बदल सकता है। आप एक बार पीएचडी करते हो तो वहां पे आपको जो थीसिस के बाद आपको पीएचडी की डिग्री मिलती है तो वहां पे एक तरीके से ये भी सत्यापित किया जाता है कि ही इज केपेबल इनफ ऑफ डूइंग रिसर्च, रिसर्च करने में सक्षम है। तो क्या सिर्फ वो एक ही बार लाइफ में होना चाहिए? वो तो हमारी कैपेबिलिटी है, मुझे रिसर्च करने आता है तो कंटीन्यूअस रिसर्च क्यों नहीं हो रहा है? Why professor stop lecturing for all? Why we are not doing the continuous research to find the good thing and new thing for the shape of that developing? तो ये एक सॉफ्ट स्किल की जो मैं बात करता हूँ, रिसर्च स्किल्स लेके मुझे सारी स्किल आती है whenever we are trying to develop anything special in our life. At last I want to say, आज आप चाहे प्राइवेट नौकरी में जाना चाहें, चाहे कॉम्पिटिशन में जाना चाहें, किस चीज की जरूरत है? There is a requirement of soft skill. कॉम्पिटिशन निकालना है, interpersonal skill, problem solving skill, communication skills, comprehension skills, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जॉब करनी है, people are wanting to know आप किस तरीके से ये सारी स्किल का यूज कर सकते हो। कम्युनिकेटर करना बहुत जरूरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना बहुत जरूरी है। These are the requirement for company and the government organization both are required. मैं चाहूंगा आप लोग अपने पढ़ाने के पद्धति में इसको जरूर इंक्लूड करें, क्योंकि हम सिर्फ सिस्टम चलाने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों को बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये भी हमारे लिए जरूरी है सोचना। Where we can find a good idea and we can make the things more better for the future prospect of the student. And we are not caring about that, that in coming days we are suffer a lot. क्योंकि आप ही सब कुछ हो और आप ही जब नहीं सोचोगे तो बच्चों का भविष्य तो it's very hard that you can regulate it in right manner. एक दो after this there is one more topic I would like to talk
elaborate here. 10 से 15 साल बाद कॉलेज यूनिवर्सिटीज कैसे होंगे आपको पता है? आने वाले 10 साल और 15 साल बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी की कंडीशंस क्या होगी? आई वांट टू से वर्ड हियर, और ये खिलाफ नहीं है, मैं जो कहना चाहता हूं कि 15 साल बाद हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी की कंडीशन पूरी दुनिया में बहुत ही रैपिडली चेंज होने वाली है। और ये हम अपने अनुभव से भी सीख सकते हैं। जैसे मतलब पहले बताया, डिग्री इन्फ्लेशन होती जा रही है, डिग्री में बड़ी महंगाई आई है। अगर आप 1990 से 2000 से फिर उसके बाद 2010 फिर 2010 के बाद ही सीसेट वगैरह लागू हुआ, आप देखिए डिग्री पे महंगाई आती जा रही है, मतलब डिग्री बढ़ती जा रही है। पहले आप ये करते थे तो मिल जाता था, अब आप एक चीज और करो तो मिलेगा, अब उसके बाद आप ये करो तो मिलेगा। तो दैट काइंड ऑफ इन्फ्लेशन वी आर फाइंडिंग इन आवर डिग्री सिस्टम टू एक्वायर द जॉब। नाउ हियर आई वुड लाइक टू से technology is forcing higher education to look at outcomes and teaching competencies rather than focusing on seat time. टेक्नोलॉजी आज हमें फोर्स कर रही है कि हम हायर एजुकेशन में आउटकम के ऊपर ध्यान दें कि बच्चा सीख के क्या निकल रहा है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच आई वांट टू से। एंड competencies that employers are looking for good beyond of technical skills of job. ये मैंने पूरा रिसर्च से निकाला है, दैट इज आल्सो फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन मार्केट। 60% एम्प्लॉय ये मानते हैं कि बच्चों के पास जो जॉब देते हैं उनका ये मानना है कि हमारे यहाँ के बच्चों के पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, इंटरपर्सनल स्किल नहीं है। और अदर 93% एम्प्लॉय का ये मानना है उनके पास टेक्निकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं है, जिसकी वजह से अंडर ग्रेजुएट कॉलेज कहने के बाद भी फोकस नहीं कर रहे। रॉबर्ट मान की मैं जब बात बता रहा था तो 1919 में उन्होंने इसका इजाद किया था सॉफ्ट स्किल का, और 1919 से लेकर आज 100 साल बीत गए। हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतनी ज्यादा रिजिडिटी है, अमेरिका भी अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाया और आज उसी का कॉन्सिक्वेंस वो झेल रहा है। एक बहुत बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट अमेरिका में आने वाली है, बिकॉज द थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड एट प्रेजेंट टाइम, दैट थिंग इज टोटली एब्सेंट। और ये सिस्टम आज कनाडा के लोगों से मैं बात करता हूँ, जर्मनी, फ्रांस, इटली के लोगों से बात करता हूँ, दे आर आल्सो स्ट्रगलिंग विद दिस। सो आई वांट दैट इफ वी ट्राई टू mentor it from this point of view, we will be able to do a lot great. Focusing more on holistic approach, foster better learning outcomes, and meet the needs employers are looking for. Higher education is going to become more competitive and finding ways to incorporate these skills into the curriculum. और हायर एजुकेशन आने वाले 1-2 साल में और भी ज्यादा कठिन होने वाला है। और ये जो सॉफ्ट स्किल्स की आज मैं यहाँ बात करके जा रहा हूँ, 2 साल बाद आपके डिग्री कॉलेज के सिलेबस में ना आ जाए तो कहिएगा क्या। और मेरा एक चैनल भी है INST के नाम पे यूट्यूब पे, उस पर मैंने कुछ मेरी वीडियोस है जो 2012 में मैंने कहा था, 2017 में पूरे देश में वही हुआ, वही वित्त मंत्री ने खड़े होकर कहा, वही प्रधानमंत्री ने कहा। एंड आई वांट टू से पूरी इंडिया में जो चीज मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, दैट आर मच रिक्वायर्ड। कल आपकी गवर्नमेंट ये करने में मजबूर होगी और जो टीचर इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, दे हैव टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। एंड आई वांट टू से दैट, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट आज पूरी दुनिया की है और ये रिक्वायरमेंट आज अगर इंडिया कहते हैं ग्लोबलाइजेशन का इरा है, देन इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट दैट how would we make up our mind that we can set up with a globalization that are much required at present time। और ये सॉफ्ट स्किल अगर हम अपने बच्चों को अभी से देना चालू करें, उनका फोकस पॉइंट बनाएं, इवन जानकारी दें, बेटा ये तुम करो, then you will find that they will be able to do something। क्योंकि जिसको कम्युनिकेशन करने नहीं आएगा वो कुछ भी पढ़ेगा, किसी को बता नहीं पाएगा। जो जब तक करेगा नहीं वो सीखेगा नहीं। जैसा कि मैंने बताया, तो हमें पहली चीज है, मान लिया कि बेसिक एजुकेशन में प्रॉब्लम है, स्कूलिंग में प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, नॉट अकाउंटेबल, नॉट परफॉर्मर, but after all we may give a little thing to them at this ground, through that they can aware, they can make up their mind and make a slight change। I'm not saying that a big change, मुझे भी पता है एक रियल प्रोफेसर के रूप में वर्क करने में बहुत चैलेंजेस है। I know we are having a system, we are having a syllabus, we are having lot of responsibility, but after all I want to say a slight effort in that direction makes a big difference among the mindset of the students। So that is very much required and I want to say we have to follow it also। इसके बाद मैं आपको जो कंटेंट बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वेल फॉर्म्ड माइंड वर्सेस वेल ट्रेन्ड माइंड। और मैं चाहता हूँ मेरे प्रोफेसर हर चीज के बारे में जानकारी रखें ताकि एक आपको आइडियाज मिलेगा किस तरफ मुझे आगे बढ़ाना है बच्चों को, और आपको काफी इंटरेस्ट भी पैदा होगा when you involve yourself in that। वेल ट्रेन्ड माइंड और वेल फॉर्म्ड माइंड के अंदर क्या होता है? मुझे याद है मैं यहीं डिग्री कॉलेज में कॉमर्स डिपार्टमेंट में बैठा था, तो एक सर ने बोला कि सर आप ये बता सकते हैं तुलसीदास और कालिदास ने कौन सी पढ़ाई की थी जो आज इतने बड़े विद्वान हैं जिनके बारे में
पढ़ते हैं। तो मैंने इस पर काफी सोच किया, काफी सोचा इसके ऊपर मैंने, और आई हैव कम टू द कंक्लूजन। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा टिप्स है टीचर्स के लिए, बच्चों को बनाने का, और बच्चों के लिए बहुत बड़ा टिप्स है। अगर आप इसको अपने दिमाग में रखते हैं तो आप सक्सेस हो जाओगे, 100% सक्सेस हो जाओगे। एक माइंड होता है वेल फील्ड माइंड, जिसमें इंफॉर्मेशन भरी होती है, लेक्चर भरा होता है, और उसके साथ साथ बुक्स वगैरह जो भी हम पढ़ते हैं वो सारी चीजें भरी होती है। उसे हम कहते हैं वेल फील्ड माइंड। एक होता है वेल फॉर्म माइंड। वेल फॉर्म माइंड वो माइंड होता है जो अननोन चीजों पे रिएक्ट करना जानता है। वेल फॉर्म माइंड वो माइंड होता है जो फोकस्ड होता है। और आज की डेट में याद रखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी जहां से जीरो की खोज की गई थी, दैट कंट्रीब्यूट अ लॉट टू द वर्ल्ड। रोमन वर्ड में हम लंबे लंबे शब्दों का प्रयोग करते थे अंक को लिखने के लिए, लेकिन वो नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी से जीरो निकलने वाला कितना बड़ा बदलाव पूरी दुनिया में किया। वो क्यों किया? बिकॉज दे आर नॉट हैविंग वेल फील्ड माइंड, दे आर हैविंग वेल फॉर्म माइंड। दैट्स व्हाई दे कम विद न्यू आइडियाज। एंड राइट नाउ भारत रिसर्च में कितना पीछे छूट गया है मैं आपको बताना चाहता हूं। 17% दुनिया की रिसर्च में भारत का सिर्फ 2.8% दिमाग यूटिलाइज हो रहा है आज। विश्व भर में जो 17% रिसर्च होते हैं उसमें इंडिया का हमारे कंट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ 2.8 है। दैट इज वेरी लो एज पर द पॉपुलेशन। और आपको पता ही होगा, नॉट अ सिंगल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कम्स अंडर टॉप 200 यूनिवर्सिटीज। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ साइंस में सीवी रमन के बाद कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं पा पाया। हम वही भारत हैं जहां से जीरो की खोज हुई थी। I am talking about that Vishnu Guru, which claims that we could make the whole world at the best place for living. I want to say, well-filled mind और well-formed mind का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, आज की डेट में इंटरनेट का इरा है। आप तो दिमाग में बनने की कोशिश करते हो। गूगल पे आप क्लिक करो, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी 100% मिल जाएगी। Then what is the use of only reading the books and not performing on that? क्योंकि जब हम किसी चीज पे परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारे पास उसके लेकर आइडियाज जनरेट नहीं हो सकते। जब हम किसी चीज की तरफ फोकस नहीं करेंगे, वी आर अनेबल टू मेक द थिंग्स क्लियर। और दुनिया में जो डेवलपमेंट होता है वेल फॉर्म माइंड का, मैं आपको बताता हूँ क्या उदाहरण होता है। एक व्यक्ति एमबीए करता है, रोड पे टहलता है, एक अनोखा सा सब्जी की दुकान खोलता है, करोड़पति बन जाता है। कैसे? वेल फॉर्म माइंड उसके दिमाग में बना लिया मुझे सब्जी की दुकान चलाना है, और उसके पास वो सारे आइडियाज आ रहे हैं जो सब्जी की दुकान को चलाने के लिए जरूरी है। उसे हम कहते हैं वेल फॉर्म माइंड। कालिदास तुलसीदास ने बना लिया मुझे भक्ति करनी है, उनके दिमाग में वो सारे आइडियाज आए, पिक्चर स्क्रिप्ट आई, उन्होंने उसको कर लिया। मोदी बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं, उन्होंने दिमाग बना लिया मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, टेकिंग ऑल द आइडियाज टू इंप्लीमेंट एंड टू एक्जीक्यूट एंड टू मेक द बेस्ट रिजल्ट। दैट इज कॉल्ड द वेल फॉर्म माइंड। पता रहना चाहिए मुझे क्या करना है। आर आवर स्टूडेंट्स अवेयर विद दैट? दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच आई वांट टू मेंशन। कम से कम हम वेल फॉर्म माइंड तो बना सकते हैं, वो क्या करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में एक्चुअल रूप से। एंड वेल फील्ड माइंड, मैंने आपसे कहा सर 16 साल से लगातार एजुकेशन ले रहे हैं, बहुत भरा होगा, 200 से ज्यादा किताबें दिमाग में भरने की कोशिश की होगी, लेकिन अफसोस की बात है कि एक भी किताब आज नहीं आती, अपने क्लास का सिलेबस भी नहीं जानते। ये वेल फील्ड माइंड है। लेकिन वेल फॉर्म माइंड अगर बनाया होता, मुझे करना क्या है, और टीचर उसकी मदद किया होता कि जो तुम्हें करना है वही मैं तुम्हें कराऊंगा, then you find that he would be a competent and a successful personality at present time. That kind of education is required at present time. So, Bill Gates हुए, स्टीव जॉब्स हुए, वॉरेन बफेट हुए, और जब हम कहते हैं कि वेल फॉर्म माइंड which reacts unknown things, जो अनजानी चीजों के ऊपर रिएक्ट करता है, ऐसा ब्रेन which are much required to us at present time. So, बिल गेट्स बने, उन्होंने कोई पीएचडी की थी, स्टीव जॉब्स बने, he has done a PhD. There are so many people, renowned people of the world, they have make up their mind, frame one thing in their mind, consistently do work on that, ideas automatically comes up and they will get success. तो सर मैं ये चाहूंगा कि यहाँ पे वेल फॉर्म माइंड बच्चों का तैयार किया जाए। और मेरी इंग्लैंड में बात हो रही थी, एक डिस्कशन है, बड़ी सी वाइस क्या प्रॉब्लम है पता, मैं पूरा डिस्कशन क्या कुछ ना था। इंग्लैंड में बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा, बहुत गुस्सा था इस पे, उन्होंने कहा सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बंद कीजिए,
कहेगा व्हाई यू आर टॉकिंग लाइक दिस, क्या फायदा है, वो कहीं कंपनी के लायक नहीं है, वो कहीं कंपटीशन के लायक नहीं है, क्यों ये कॉलेज यूनिवर्सिटी चल रहा है? एंड यू गेट अमेज्ड। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप किया गया है कि आने वाले 3 साल बाद रोबोट पढ़ाएंगे, ह्यूमन बीइंग आर नॉट रिक्वायर्ड। अमेरिका यूरोप में अभी से काम चालू हो गया, बिकॉज ह्यूमन बीइंग आर नॉट एबल टू परफॉर्म एट द अपग्रेडेड इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई वी इंस्टीट्यूट रोबोट ओवर देयर विद द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, दे परफॉर्म द थिंग इन बेटर वे। कितना बड़ा खतरा है ये हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग पूरी विश्व में इतनी टाइम छाई हुई। इसलिए और मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करूंगा, इसके बहुत बड़े ड्रॉबैक्स भी हैं, लेकिन आज ये हमारे टीचर्स को सोचने की बात है। ऐसे ऐसे आइडियाज लोगों को सोचने क्यों पड़ रहे हैं? टीचर अपग्रेड नहीं हो रहा है, टीचर अपग्रेडेशन नहीं दे रहा है, लोग इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं कि रोबोट के अंदर एक नई फंक्शनिंग करके उसको क्लास में छोड़ देंगे, वो बेस्ट नॉलेज बच्चों को दे पाएंगे। दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन एंड आई वांट टू से, फिर भी मैं एक चीज बहुत ही दावे के साथ क्या करता हूं, मशीन कभी भी मानव का जगह नहीं ले सकती, क्योंकि रोबोट सिर्फ प्रोग्राम निर्भर करेगा, मानव प्रोग्राम के आगे होकर नई चीजों को पैदा करेगा। एंड दैट्स व्हाई ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज ह्यूमन बीइंग एंड मशीन इज ऑलवेज अ मशीन। मशीन कैन परफॉर्म ओनली व्हाट वी गिव एंड ह्यूमन बीइंग कैन परफॉर्म beyond the expectation what he's doing right now. And there are one more thing I want to say over here. There are some topics are there. थोड़ा सा I want to just make a bit shorter way because it would take too much time to explain everything. Class management. This is also very important term. मुझे बताया गया कि यहाँ पे 200 की जगह 250 बच्चे बैठ जाते हैं, बच्चे बहुत एक्सटेंडर्स आते हैं, कंट्रोल करना मुश्किल होता है। I took all kind of inputs from here and other institutions. To be very practical, I would like to say, वाकई में ये बहुत बड़ा चैलेंज है, जहाँ पे मैं समझता हूँ शिक्षा में सुधार तभी हो सकता है जब अभिभावक भी साथ दे, समाज भी साथ दे और लेक्चरर भी साथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई नो अबाउट दैट, बट मैं कहता हूँ लेक्चरर शुरुआत करें एंड आफ्टर दैट आई ट्राई टू कंडक्ट सम प्रोग्राम अमंग द पेरेंट्स आल्सो सो दैट दे गेट अवेयर एंड दे सपोर्ट द लेक्चरर टू डू समथिंग इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। और परसों नरसों में आई थिंक दैट वी हैव अ मीटिंग विद द वीसी आल्सो एंड देयर आई ट्राई टू implement and execute something which will workable for the colleges also. So sir, here I would like to say, classroom can be explained as an action and direction by which a teacher want to make a student learn. Classroom क्या होता है? हमारा एक्शन या डायरेक्शन ऐसा होता है मैनेजमेंट जब हम बात करते हैं, जो कि सक्सेसफुल लर्निंग के लिए इन्वायरमेंट जो भी हम बनाते हैं उसी को हम कहते हैं क्लास मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक टर्म है, ठीक है, मान लिया रिसोर्सेज नहीं है, चीजें ठीक से नहीं हो रही हैं, टेक्नोलॉजी की बड़ी अभाव है, सारी चीजों का है। मैनेजमेंट कहते हैं इसे टू यूटिलाइज आवर अवेलेबल रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट वी कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है उसको हम बेस्ट तरीके से उसका इस्तेमाल करें ताकि हम एक बेहतर रिजल्ट पा पाए, वही मैनेजमेंट है। एंड टीचर शुड बी अ मैनेजमेंट थ्रू, ही नीड टू मैनेज द थिंग्स, he need to upgrade, he need to utilize the things, and I want to say this is a very important factor। और यहाँ पे एक पॉजिटिव क्लासरूम कैसे बनाया जाए इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। हम मानते हैं ये जरूर सही है कि दिन तक नीले रात की आग टूटी चवाए में पानी साफ मिला निर्मल करे सुहाए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है बच्चों के अंदर डर ना बैठे। If they get afraid, then your connectivity is totally lost। आप क्लास में तो रहोगे लेकिन उनको कोई फायदा नहीं होगा। Connectivity is very important. We have to develop a connectivity with students to whom we are giving the lecture. And if we are able to create the connectivity, then it will be very harmful for us to one side class is going on, another side they can't get anything from your side. मैं कहता हूँ 1 घंटे अच्छे से मैनेज करके लें, लेकिन वो हफ्ते में 1 घंटे, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमको कन्वे कर पाए so that they can perform. कंस्ट्रक्टिव डिसिप्लिन, हमारे यहाँ कंस्ट्रक्टिव डिसिप्लिन किसे कहते हैं? एक आलोचना होती है, एक समालोचना होती है। आज की डेट में समालोचना की जरूरत है।
नॉट इवन निगेटिविटी। मैंने देखा है, मैं जब किसी से कहता था आई वांट टू से अबाउट माई सेल्फ, मैं एक दिन जो है बहुत बड़ा टास्क करूंगा एट द टाइम, पीपल आर लॉ फॉर मी। एक बार मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया था तो बहुत ग्राउंड लेवल पे किया था। आई एम वर्किंग एज एन एंटरप्रेन्योर, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी से कोई सपोर्ट नहीं लिया था, फैमिली से किसी से, एंड आई हैव डन ऑलमोस्ट अ काइंड ऑफ वर्क वेयर आई कैन क्रिएट द थिंग्स। पैसा क्या होता है वो तो बहुत, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा मेन इशू होना चाहिए। और मैं आपको कहता हूँ काफी लोग जो भी कर रहे हो, मैं अपनी खुद की 25 साल की उम्र में मैंने 1.5 करोड़ रुपए कमाए, एंड आई वांट टू से दैट इज नॉट विद द हेल्प ऑफ द पीपल, दैट इज विद द हेल्प ऑफ माय ब्रेन। आप भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्लास ले सकते हो, थोड़ी सी चीजें हैं, यू हैव टू अपडेट। अगर आप चाहोगे मैं आपको ट्रेनिंग भी दूंगा, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी से जुड़ो, आप यहाँ की क्लास के साथ इंटरनेशनल वर्क करो, यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू अर्न द मनी। मनी इज नॉट अ बिग इशू, नॉलेज इज द बिग इशू, एबिलिटी इज द बिग इशू, परफॉर्मेंस इज द बिग इशू। क्योंकि पैसे से न ज्ञान आता है, लेकिन ज्ञान से बहुत पैसा। सो आई वांट टू से दैट हमें फोकस किस पे करना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने पे, अपनी एबिलिटी को बढ़ाने पे, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने पे, एंड दैट वुड मेक अस अ ग्रेट पर्सन फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो पॉजिटिव क्लासरूम होना चाहिए, निगेटिव क्रिटिक्स नहीं होने चाहिए, इंकरेजमेंट होना चाहिए, डिस्करेजमेंट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंसली बच्चों को सुनना चाहिए। मैं भी पढ़ाता हूँ, मुझे भी लगता है जब कोई बहुत गुस्सा आती है, दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, दे आर समटाइम्स इट सीम्स टू मी दे आर गुड फॉर नथिंग, बट आफ्टर ऑल वो हमारे ही भरोसे, वो हमारे ही बच्चे। वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट द वे, और असली टीचर वही है जो हर मर्ज का इलाज है। बच्चे को दिक्कत क्या है उसके बारे में भी हमें सोचना होगा, हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच देम दैट दे कैन गेट बेनिफिट ऑफ। एंड आई अंडरस्टैंड व्हेन द बेस इज लो इट इज वेरी हार्ड टू प्रोवाइड द थिंग। और मैं तो एक बहुत ही गलत बात मानता हूं जो आज हमारे समाज में है, बच्चे टीचर के भरोसे हो गए। ये बहुत ही गलत बात हुई है, और शायद इस चीज को रिमूव करने के बिना हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। गुरु मार्गदर्शन करता है, इज इट राइट? जो मार्गदर्शन किसका किया जाता है? जो चल सकता है, उसको हम रास्ता बता देंगे वैसे चलो, लेकिन जिसको चलने नहीं आएगा उसको पहले चलना सिखाना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए। आज हमारे स्टूडेंट चलना नहीं जानते, सब कुछ टीचर बताएंगे, सब कुछ सर बताएंगे। हमें कहीं ना कहीं इसी पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों को खुद एक ऐसा एस्पेक्ट दें, ऐसा वर्क दें जिसपे वो खुद से परफॉर्मेंस करना चालू करें, तभी हम मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि गुरु सहायक होता है, विद्यार्थी निर्णायक होता है। गुरु का काम है असिस्टेंट करना, सहायता करना, लेकिन विद्यार्थी अगर उस पर अपने आप को पूरी तरीके से इंगेज नहीं करेगा, करना विद्यार्थी को है, गुरु को नहीं। तो ये कहीं ना कहीं कल्चर में पैदा करना होगा कि स्टूडेंट शुड बिकम अ परफॉर्मर। वो हम मोटिवेशन और इंकरेजमेंट से कर सकते हैं, उनको इंकरेज करें, उनको मोटिवेट करें, और कम से कम हम प्रत्येक दिन मेरे साथ आप लिंक्डइन पे भी जुड़ सकते हैं। मैं खुद यहाँ पे प्रत्येक दिन मैं आपको अपग्रेडेड नॉलेज भेज सकता हूँ जो बच्चों को दें, जो आज 21वीं सदी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी। That all the things we have to give them, we have to connect them, and that will be very helpful for us for the future prospect। और दिल्ली और जौनपुर में कोई अंतर नहीं है, नॉलेज आपका परिपक्व होना चाहिए। इसी जौनपुर में रह के मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और अन्य लोगों से बात करता हूँ, डॉक्टर अब्बास है, IIM में पढ़ाते हैं लखनऊ में, मैं बात करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि they are better than me। Why? Because I am following the thing in each and every day. He is following the thing for some days, and I want to say that if you want to be a global leader and if you want to do something greater in your life, for that it will be very important that you have to adopt the thing fastly and make the reflection of it as soon as possible, and that will leave the change in a very broader way, and that's I try to do। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ, और इसके साथ साथ प्रत्येक दिन हमें प्लान बनाना होगा। क्लास मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट इशू है जो कमजोर और तेज बच्चों को लेकर दोनों जगह वर्केबल हो। और मैं आप लोग की क्षमता में पूरा, मुझे श्रद्धा विश्वास सब कुछ है, आप लोग अगर थोड़ा प्लान बना के थोड़ा सा टाइम निकाल के इस पे प्लान बनाएंगे। और एक और अच्छी चीज बता देता हूँ, कुछ ग्रुप बनाने, टीचर ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, जौनपुर में टीचर कम्युनिटी की ग्रुप होनी चाहिए, जो डिस्कशन जो भी प्रोफेसर चाहते हैं बहुत बड़े लेवल पे करना। कम्युनिटी टीचिंग अमेरिका में बहुत ज्यादा फेमस है, और उसी का कारण है कि वो बहुत तेजी से अपडेट करते हैं। हमारे यहाँ जो 5-10 या आप लोग में से मैं सबसे माध्यम से कोशिश करूंगा, जो भी चाहते हैं बड़े रिसर्च का हिस्सा बनना, एक बहुत बड़ा बदलाव करना, लीडर बनना, गेट कनेक्टेड टू ईच अदर। और जब हम नॉलेज एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे से, जब हम आइडियाज एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे से, तो निश्चित तौर पे हम एक ब्रांड बना लेंगे और हम एक अपग्रेडेशन पैदा कर सकेंगे जो बहुत ही बड़े पैमाने पे होगा। क्योंकि विद्वता
चर्चा करने से और ज्यादा बढ़ती है। When we discuss about the issue, then ideas automatically comes in our minds. Because discussion gives direction to intelligence to find the ideas. And when we are not giving the discussion, intelligence are not getting directed and there is no idea comes in our mind. तो जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तभी हम उसका उत्तर खोजते हैं। और मैं कहता हूँ प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। अर्जुन ने अगर कृष्ण से प्रश्न ना किया होता तो गीता नहीं दिखाई होती। न्यूटन के दिमाग में प्रश्न नहीं आया होता तो कभी भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की खोज नहीं हुई होती। और आज दुर्भाग्य सबसे ज्यादा हमारे स्टूडेंट का खासकर है उन्हें प्रश्न पूछना नहीं आता, क्योंकि प्रश्न क्यूरियोसिटी पैदा करता है नई चीजें करने की। मैं अगर यहाँ पे एक प्रश्न छोड़ दूंगा तो आपका इंटेलिजेंस उसको खोजेगा, ये है क्या, मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। और आज के अपने इस वर्कशॉप में मैं यही चाहता हूँ, कुछ मैं प्रश्न छोड़े जा रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप पूरा अध्ययन करें और उसके बाद एक बेहतर चर्चा हो, इस पे एक अच्छा डेवलपमेंट हो एंड वी कैन गो विद द ग्रेट आइडियाज व्हिच आर रिक्वायर्ड एट प्रेजेंट टाइम। एंड आई थिंक दैट द टर्म व्हिच आई हैव यूज्ड about the emotional intelligence or other aspect that is much required at present time. इसके बाद एक टॉपिक और है, I want to say this would be the one more topic which I would like to say, importance of being mentor in 21st century. आज आपको पता है mentor शब्द गायब हो गया है, जो हम mentor का यूज करते हैं that is not so popular at present time. Because there is a lot of downfall comes up on the standard of ethical and moral values of the teachers. जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया, एक बच्चा इंटर किया, बीए करके निकला, तो उसकी जिंदगी का कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो फाइल लेने के दौड़ेगा हर जगह और उसका बेनिफिट कोचिंग वाले उठाएंगे। और मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे हमारे कॉलेजेस में ही कुछ ऐसे प्रोग्राम सेटअप किए जाए, along with the education, academic education, we provide them something which makes them good performer for the future prospect. गुरु जो भी हैं बच्चे से पूछे वो चाहते क्या है एंड along as per that ground वो एक प्लान तैयार करें और बच्चों को दें, थोड़ा मार्गदर्शन कर देंगे, बच्चे अपने आप को एक सही दिशा में ले जा पाएंगे। अदरवाइज दे आर वेस्टिंग द मनी। आज 70% से ज्यादा पैसा आपका जौनपुर का बाहर जाता है और उसमें से 99% लोग असफल होकर लौटते हैं। And I want to say again, place never makes the difference. Difference comes when we take our thoughts. So it would be important for us that we have to guide the students for the future prospect of their house. Importance of being a mentor life in 21st century. Mentor को हम कई तरीके से elaborate कर सकते हैं, जैसे कोच, एडवोकेट, गाइड, फैसिलिटेटर, एडवाइजर, guru, counselor, tutor, consultant, common thread of those in highlighted in the quote by the Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या कहा था? I am not a teacher but I am a awakener. उन्होंने अपने एक पोयम में कहा था, जो बहुत बड़ी बात अपने आप में है, कि मैं एक टीचर नहीं हूँ, मैं एक अवेकनर। कहने का तात्पर्य क्या है? एक क्रांति लाने वाला व्यक्ति, लोगों को जगाने वाला व्यक्ति, नई दिशा में ले जाने वाला व्यक्ति, मैं वो हूँ। I am not a person who is simply going to give the classes or the message of that. So एक अवेकनर बनने का मतलब है जो व्यक्ति मेंटर का एक सिंपल शब्द में आई वांट टू एलैबोरेट ओवर हियर, दैट इज मेंटर कैन इल्यूमिनेट अनटैप्ड एरियाज फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। इन अदर वर्ड्स, अ मेंटर कैन शो यू पॉसिबिलिटीज दैट मे हैव नॉट ऑन योर रडार एट फर्स्ट। मेंटर जो होता है वो आपके अनटैप्ड स्किल्स, जो बच्चों को पता भी नहीं रहता मेरे अंदर ये स्किल्स है, उसको खोजता है और उसको रियलाइज कराता है that you can go with it, you will get success. That is the work of mentor. And right now it would be very important for us to be a mentor. क्योंकि अगर हम लोग बच्चों की जिंदगी से मतलब नहीं रखते कि जो आजकल हो रहा है, सपोज कीजिए कोई PhD कर रहा है, then it is okay, लेकिन जो ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, teacher are not connecting with them. They are finding their ways. I think that teacher should play a little bit crucial role in that. हमें उनके लिए एक mentor का रोल भी अदा करना चाहिए. We have to give them the way, and we should try to connect with them so that they can take continuous benefits from our side to make themselves a successful person. और उनकी जो अनटेप्ड स्किल है उसको हमें डेवलप करने की जरूरत है, जिससे उनका करियर बेहतर तरीके से बन पाए। एंड नाउ लास्ट वन आई वांट टू से ओवर हियर, because this is also very important aspect which I would like to say, and that is how to make our better planning, better teaching and better learning. These three issues are very important.
When I say about the planning, planning का मतलब क्या होता है? Planning is a bridge which unite us or make us to reach on the destination. आने वाले कल में बनने का जो मंजिल है उसमें और आज में जो एक रास्ता हम बनाते हैं उसी को हम प्लान कहते हैं. Plan should have some purpose. जब भी हम किसी चीज का प्लान बनाते हैं वो किसी पर्पस से बनता है. And it would be very important for us that we have to make our purpose of teaching. हम अगर पढ़ाने गए हमने एक बुक को सरल लैंग्वेज में इलॉबरेट कर दिया, ये टीचिंग नहीं होती. We explain it and elaborate in easy language. That is not a teaching. We have to give the new kind of ideas. We get to draw the concentration of the students in new ways. That is our potential job of teaching. We need to go through that. जहाँ पे हम एक नई दिशा दे पाए, नया प्रश्न दे पाए, नई चीजें दे पाए सोचने के लिए, जो चीजें आज प्रेजेंट टाइम में घटित हो रही हैं. These all the things are important. So whenever we are making the planning, तो हमारे ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होने चाहिए. और मैं जरूर कहूँगा आज इस बारे में सोचिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा. What is my purpose when I am going in the class? Are we going to elaborate them the book? Are we going to finish our syllabus? Or we want to make them something for their future, someone great for the future prospect? That would be very important thing. And I want to say कि हमें जरूर ये दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं बार-बार कह रहा हूँ, लेक्चरर have a very important responsibility on their shoulder, and at present time they should think, what is the purpose of my teaching? मैं जो टीचिंग करने जा रहा हूँ, what is my purpose? What I want the students to understand, to believe, to do after my class. That is important point. कि वो जो स्टूडेंट्स है, जो हमारी जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे लेक्चर के बाद वो क्या करें, क्या माने, क्या विश्वास करें. That all the things are very important. I think we should keep in our mind. And if we are not doing this thing in our mind, we simply go and elaborate the books. Then I want to say the consequence of it in the future prospect would be very dangerous. मुझसे बहुत से लोगों ने ये भी कहा मुझे यहाँ आने के पहले कि लेक्चर की खुद इतनी सैलरी है, वो आपकी बात क्यों सुनी? Why they are listening? They are getting good salary, they are doing their job. Why they are listening? मैं फिर भी यहाँ पे आया because I believe कि हमारे जो लेक्चरर हैं, they are the leader of the future prospect of the city. और मैं आप लोगों को एक लीडर के तौर पे देखता हूँ, जो इस शहर को आप लोगों की सहायता के बगैर बदला नहीं जा सकता. और ये जरूरी है कम्युनिटी सेट करना. जब क्वेश्चन रेज होगा, सामने वाला जिम्मेदारी खुद खोजेगा. You have to raise the question to the system, to the university, to the people. What they are doing in the colleges and the students. It would be very important to raise the question and make the appreciation. और मैं फिर कहूँगा समालोचना जरूरी है, आलोचना. मैं हर इंस्टीट्यूशन को बेहतर करने के बारे में सोचता हूँ, मैं किसी इंस्टीट्यूशन को गलत नहीं सोचता. Every institution are good, और मैं किसी लेक्चर को कम नहीं सोचता. Every lecturer are renowned and having their degree. और चूंकि उनके पास इतनी क्षमता है, इसलिए उम्मीद करता हूँ जिस दिन वो चाह जाएंगे, हम दिल्ली मुंबई से आगे जाएंगे. Only we need to make a big change in our thought process, and that will make us to leave the whole universe. And I want to say, for being a person of performance, it would be very important that we have to do all that aspect. मैंने पूरी इंडियन एजुकेशन को बदलने के लिए कई बार लेकर प्रधानमंत्री से लेकर सबको लिखा, कुछ आउटपुट भी मिले हैं. And the thing is that I am saying to you, I want to make you sure that next visit, it may be that I connected with a PMO also. इसी जोधपुर का रहने वाला हूँ, पूरे हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता हूँ. 150 से ज़्यादा लोगों से बातचीत कर चुका हूँ, 50 लेक्चरर्स से ज़्यादा के साथ काम कर चुका हूँ, और पूरी दुनिया का आइडिया रखता हूँ किधर से हो रही है एजुकेशन सिस्टम. एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू से कि ये स्किल डेवलपमेंट की जो बात आती है, जैसे मैंने आपको बोला बहुत कुछ नहीं है, थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चपाती बनाने वाला स्टेप नहीं होता, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा. और उसके साथ साथ जो टेलर होता है वो फैशन डिजाइनर नहीं होता. क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस अपना एक स्थान रखती है जो ही इस दुनिया को आगे बढ़ाती है. सो इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड स्किल इज वन थिंग बट दैट इज लिमिटेड, बट इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी इज समथिंग व्हिच आर मस्ट रिक्वायर्ड इन प्रेजेंट टाइम एंड वी हैव टू गो फॉर इट. बेटर टीचिंग जब हम करते हैं, हमें अपनी बेटर टीचिंग में क्या करना चाहिए? लेटेस्ट एग्जांपल्स को हमें इंक्लूड करनी चाहिए, जो हमने खुद से जस्टिफाई किया, खुद से उस पे अपनी सोच को रखा. मैंने काफी लोगों से सुना कि कई बार ऐसा होता है कॉलेज में एक तरीके का लेक्चर हर साल चलता है. आई वांट टू से वी शुड चेंज दिस. एग्जांपल चेंज कीजिए, एग्जांपल अपग्रेड कीजिए, जिससे स्टूडेंट का एंगेजमेंट बढ़ेगा. और जो हमारे यहाँ एक गलत परंपरा चल रही है, जो कि हम लोगों को बदलना है,
कि जौनपुर के हैं तो क्या है, we have to change. We have to make a great impression on it. We have to develop ourselves that we can lead the whole Purvanchal and whole Uttar Pradesh, and we not to care what people are talking about, we have to care what we are doing. And the last one, और teaching का टाइम ज़्यादा जरूरी है, we have to क्योंकि इनोवेशन जब भी हम करते हैं, एग्जाम्पल्स जो हम अपने आप से क्रिएट करते हैं, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और जब हम किसी चीज़ पे एनालिसिस करके उसको पढ़ाएंगे, उसको हम ज़्यादा बेहतर और प्रैक्टिकल रूप में समझा पाएंगे। और टीचिंग में एक चीज़ का और ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्लासरूम क्या होती है? क्लासरूम इज एन एक्सपोजर ऑफ द वर्ल्ड। एक क्लास में जाने के बाद वहां से बच्चे को दुनिया का एक्सपोजर मिलना चाहिए कि दुनिया में चल क्या रहा है। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ द क्लास, एंड वी आर एबल टू गिव द एक्सपोजर ऑफ द वर्ल्ड इन द क्लासरूम। दैट मींस वी आर नॉट इन द राइट बिजनेस, क्योंकि वो बच्चे कल इस दुनिया में जाके काम करने वाले हैं। क्या हम उनको स्लाइड बना रहे हैं? एक नया टर्म मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में आने वाला है, जल्दी ही आप लोग सुनेंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ये प्रोसेस आने वाला है। अब इसमें जो इंडिकेशन दिया गया है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में, ये एक प्रोजेक्ट के बेस पे पढ़ाया जाएगा, रियल लाइफ प्रोजेक्ट के बेस पे पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद वो उसी चीज पे वर्क करने के बाद कंपनी में जॉब करेगी। एंड दैट इज समथिंग व्हिच विल कम टू हैपन। नाउ लास्ट पॉइंट, बेटर लर्निंग। और मैंने लर्निंग के बारे में आपको बताया, एंड यू डू द थिंग, यू कांट लर्न द थिंग, एंड इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गो थ्रू इट। With these all words, I want to use up my today's workshop, and I want to say, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी था, मुझे ये बताना था कि what I want to give you, which will helpful, और मैं इसमें आपको अगर आवश्यकता पड़ेगी, मैं ट्रेन करने के लिए भी तैयार हूँ। I will train you on that level where you will be able to perform at greatest places like the whole world. You understand? And world is accessible for us. दुनिया पूरी तरीके से एक्सेसिबल है, हमारे आइडियाज वहां जाने चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो कम्युनिटी जिसकी मैंने बात की है कि ग्रुप ऑफ renowned lecturers should come together and do the research on that, how we make a change for the future prospect of this country. With these all words, I would like to give my special thanks to all of you that have given your precious time to me, and this is the mission which is going on in my mind, and for that I am working, and I want your support. That's why I am coming over here. And if you are supporting me, I think that I will make this institution one of the top institutions of India. And with your support only, I can manage the things which I am thinking, that how would I develop this place and how would I make Jaunpur opportunity of land